मेरा नाम है राजीव कनौजा जेएनआर के बी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नामबियर जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं हम दोनों हैं नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा आपके साथ। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव, अस्सलाम वालेकुम। महादेव। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, शलोम, वणकम, चाइनीज में नी हाओ, जापानीज में कोनिचिवा। प्रदीप जी, Abaryako Jambo for viewers from East Africa, South Africa and the continent of Africa, wherever they speak Swahili. fantastic. So Pradeep ji, now we are at the end of the election. मतलब अब तो बिल्कुल सर। कल जो है वो लास्ट फेज है, 7th फेज Yes, है। yes, yes. और माशाल्लाह नरेंद्र मोदी साहब जो है वो अपने ध्यान में कन्याकुमारी पर, the whole opposition is up in arms as to how can he go on meditation like this. I don't know why he can't go on meditation, but anyway that's what they say. और I think things seem to be crystallizing now, more or less. It's now more or less clear. A lot of people say things are very unclear. I don't think so. I don't really think so. I think BJP is going to do very well. The Congress is not going to do as badly as predicted. That's what they say. But Mr. Modi comes back in a spectacular manner for a third term. And if you ask the BJP and if you ask most of the people who are policymakers in the BJP, they say this time, this term will be far more spectacular than his other two terms. That's what they say. Pradeep ji. Sir, मैं वही कर रहा हूँ because when the India Alliance says that we are winning, we need to make a postmortem and find out where and how they are winning. We've been trying to ask them where are you going to win from. They say we're going to clean sweep Uttar Pradesh, we're going to give a big jolt. Maharashtra में बहुत बड़ा jolt देने वाले हैं. Where is the Karnataka? BJP will not get what they got last time. You talk about Bihar. You talk about so wherever when you dissect these places, we find that BJP has very precision kind of politics there. Because north way it's caste based where UP and Bihar is concerned. They have got the caste equations right for them, and I don't know whether the crowds that throng the Rahul Gandhi, Akhilesh Yadav, jitne bhi manch hai, the crowds that come is going to actually translate into votes. And No, huge even if votes. they do, Pradeep ji, even if they do, they are mostly Yadav votes. बिल्कुल सर. तो Yadav vote तो वैसे भी समाजवादी पार्टी को मिलने वाले हैं। Exactly, exactly. उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? No. Anyway, let's go across to Mr. Avdut Bhag. I think he's with us. Avdut Bhag साहब नमस्कार। नमस्कार सर, हाउ आर यू? Absolutely fine. जय सिया राम सर, हर हर महादेव। हर हर महादेव, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, जय भवानी। तो अवधूत भाग साहब, जबरदस्त इलेक्शन रही, अब तो कल लास्ट फेज है। योर एनालिसिस सर, अभी तक का एनालिसिस आपका क्या है कि किस प्रकार इलेक्शन गई है और भारतीय जनता पार्टी इस वक्त कहां खड़ी है, बताएं सर। भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में कहा है कि वी विल क्रॉस 370 एज भारतीय जनता पार्टी एंड अलोंग विद आवर पार्टनर्स वी विल क्रॉस 400। हम लोग थोड़े से पेसिमिस्टिक थे वो टाइम, लेकिन मुझे आज लग रहा है एनडीए विल बी अराउंड 411 to 413। 411 to 413, and out of which BJP will be at? BJP will be somewhere at 370, 71 somewhere. So which That means if your calculations, and I still remember, by the way, let me remind our viewers, Mr. Avdut Wagh was the first person to say right here that the BJP is coming back with a minimum 350 seats. That's what he had said here 1.5 years ago. Sir, which means that the Congress is going to be decimated completely. There will be no Congress left. See, अब आप देखेंगे ना बजाज साहब, तो ये सवाल आप कांग्रेस को पूछना चाहिए जी कि जब कांग्रेस और बीजेपी सामने सामने 2019 में खड़ी थी, तो अराउंड 220 सीट्स हमने आमने सामने लड़ी। 240 तो उसमें से 15 सीट्स वो लोग जीत गए, बाकी के सब हमारे जीत गए। सो लेस देन 6% स्ट्राइकिंग रेट था। ये टाइम क्या होने वाला देखिए कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन पंजाब
Congress will reduce because Aam Aadmi Party has gained popularity over there. Yes, yes. So it is Aam Aadmi Party, Congress, Bharatiya Janata Party and Akali Dal. इसमें भारतीय जनता पार्टी is going to gain seats in Punjab and that is at a cost of Congress. दूसरी जगह देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में तो कांग्रेस को कुछ है ही नहीं जी, पिछली बार भी एक ही सीट थी, एक सीट आई, पिछली बार एक सीट आई। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सीट ली थी केरला में जी, बट नाउ केरला में द लेफ्टिस्ट एंड कांग्रेस they are standing in front of each other, they are fighting with each other. D Raja's wife contested election from Wayanad yes. against Rahul Gandhi ji. yes. And Bharatiya Janata Party is also there. Bharatiya Janata Party is not only going to increase its voting share, but I am sure we are going to get couple of seats even in Kerala. In Kerala? If not more. Wow. So, I am really surprised from where Congress is going to get seats. Rahul ji, Bajaj Saab, I was in Varanasi from 21st of this month to 26th of this month. जी. Visited Varanasi, but it is not I have met only Varanasi people. At Baba Kashi Vishwanath's temple, when I was standing on various ghats in temples, I have seen many Shraddhalu from all over India. And surprisingly, most of the people were from South and Tamil Nadu. They were so excited about Bharatiya Janata Party. When we were doing canvassing over there using dupatta and our cap and badges and all these things, they used to come and greet us. They had only 4 words to communicate with us. One is Modi. Another is Tamil Nadu's Bharatiya Janata Party's president K. Annamalai. Annamalai. Yes. Third is Lotus. And another is BJP. Only 4 words they used to communicate because I am unable to speak in their language and they are unable to speak my language. But only 4 words. Modi, Annamalai, BJP and Kamal. Yes. That's it. I have really seen how people, especially the people from South, they are pouring their love on Bharatiya Janata Party, Modi and Annamalai. And I can tell you for sure, I met Annamalai only once in our Rashtriya Karyakarini at Delhi. But I have seen many of his videos. I have really followed him on various media places. He is the next yogi from South. A day will come, he will become the chief minister of Tamil Nadu. Wow. And Wouldn't that this be is fantastic? how. This is how. See, people used to laugh at us when we used to work at Tripura. Tripura was a forte of communist. Yes. But we won Tripura. We worked. Rashtriya Swayamsevak Sangha worked in Tripura for 40 years. And after 40 years, we managed to get a power in Tripura. We have administered the state so well that second time the people have voted Bharatiya Janata Party at Tripura. The same is going to happen in Tamil Nadu. How many seats we are going to get in Tamil Nadu is not important. But Bharatiya Janata Party is going to become a contender of power with DMK. And there will be only 2 parties. One is DMK and one is Bharatiya Janata Party, which is going to play a crucial role in southern politics. This is how we are working. We are not working for 2019. We are not working for 2024. We are not working for 2029. No. We are working for 2047 where we are going to finish 100 years of our independence. We want to rule over the country till that time to make this particular country a Vishwaguru and a developed country. विकसित भारत का सपना साकार करने के लिए हम सिर्फ 2024 का चुनाव नहीं देख रहे, हम इस चुनाव को 2029 और उसके बाद में आने वाले सभी चुनाव की एक रंगीन तालीम बोलकर देख रहे हैं। वाक साहब, मगर आपका बीजेपी, कांग्रेस, राहुल गांधी, अखिलेश यादव believes that they can stop your Vijay Rath in Uttar Pradesh.
अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि पीडीए और इंडिया अलायंस का जो फॉर्मूला है, इसे पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक 20%, दलित और पिछड़ा मिलकर एंड इंडिया अलायंस will see that मोदी जी के विजय रथ जो यूपी में बहुत भरोसा है कि it will take them to victory, it will be stopped there. अखिलेश यादव is confident, राहुल गांधी is confident. जैसे हमारे जो सभाओं के देखिए लोग निकल कर बाहर आए, ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, इंडिया अलायंस नहीं, लोग चुनाव लड़ रहे हैं. That is what अखिलेश यादव and राहुल गांधी claims. वाह साहब, अखिलेश यादव को ना अक्ल है ना शक्ल, ना अक्ल ना शक्ल, चला के लगा के बकल चले दिल्ली, ऐसी उसकी हालत हो गई है. लास्ट टाइम ऑल्सो बहन मायावती और भाई अखिलेश साथ में आए थे, 2/3 मेजोरिटी योगी जी ने उत्तर प्रदेश में ले ली थी. इस टाइम भी यही हालत होने वाली है. 77 + 2 79 सीट्स वी आर गोइंग टू विन. वी आर गोइंग टू लूज 1 सीट इन उत्तर प्रदेश. 2 our alliance partners will win. 77 seats will win by Bharatiya Janata Party. I am not exaggerating it, but I don't know the reason why people should vote for Akhilesh. What for? What is the program? Why people should vote for Rahul Gandhi? For what? और दूसरी बात है, आपको भी याद है और बजाज साहब को भी याद है, ग्रामोफोन होता करता था, उसमें एक प्लेट होती करती थी, वही प्लेट चला के घिस जाती थी. अभी 1947 से चालू किया हुआ गरीबी हटाओ का नारा, दलितों का नारा, अल्पसंख्यकों का नारा, एक घसी पीटी जो रिकॉर्ड है, अभी लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है. आज के टाइम का जो मॉडर्न गीत है वो विकास का गीत है. आज का जो रैम सॉन्ग है, जो क्या बोलते सुपरस्टार नरेंद्र मोदी जी ने लिखा है, वो विकास का गीत है, वो भारत के गौरव का गीत है. लोग वो सुनना चाहते हैं, लोग वो पसंद करते हैं, ना इनकी घिसी पीटी जो तबकड़ी है. लेकिन अब्दुल बाग साहब वो तो कहते हैं कि जैसा उनका मैनिफेस्टो है, उन्होंने कहा कि भाई जैसे आएंगे वो तो 30 लाख नौकरियां दे देंगे. देयर आर 30 लाख वैकेंसीज इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, दे विल फिल इट अप इमीडिएटली. उसके अलावा कहते हैं 8,500 रुपये महीना मिलेगा महिलाओं को, एक महिला को हर घर में. साथ में अप्रेंटिसशिप में इट इज पहली नौकरी हमारी जिम्मेवारी है. ये सब कहा है उन्होंने सर अब्दुल बाग साहब. हमारे मराठी में एक कहावत है, हलवायाच्या घरावर तुळशी पत्र. इसका मतलब है जिसको कुछ करना ही नहीं है वो कुछ भी बात कर सकता है. दूसरी बात है, मैं भी बोल सकता हूँ, यदि मैं भारत का हम लोग जब बच्चे थे तो हम लोग एक ऐसे लिखते थे, मी पंतप्रधान झालो तर, यदि मैं चीफ प्राइम मिनिस्टर होता तो क्या करता, कुछ भी लिखते थे. तो इसी प्रकार से वो लिखते हैं. हिमाचल प्रदेश में वो क्यों नहीं करते? जहां उनकी सत्ता थी, राजस्थान में सत्ता थी, उन्होंने क्यों नहीं किया? छत्तीसगढ़ में उनकी सत्ता थी, उन्होंने क्यों नहीं किया? कर्नाटका में उनकी सत्ता है, वो क्यों नहीं कर रहे? वो कहते हैं बजट नहीं था सर, वो कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट लाने की जवाबदारी हुई है ना. आप खर्चे की बात करते हैं, आमदनी की क्या? तो आमदनी 98 खर्चा रुपया है. तो ऐसा तो देश नहीं चलता है. देश तो ऐसा नहीं चलता है. मैं कहता हूं कि उन्होंने जो कुछ वादे किए अच्छे हैं, लेकिन वो वादे पूरे कैसे करें उसकी भी बात करें. सर आप देख लीजिए कि आप पकड़ लो 6 लाख रुपए एक आदमी के ऊपर, यदि एक सरकारी नौकर है उसके ऊपर खर्चा होता है. 30 लाख यदि नौकरी देंगे तो बरस का कितना हो गया? 18 अराउंड 2 लाख करोड़. बाद में उन्होंने कहा है कि हर महिला को हम लोग 1 लाख रुपए देंगे गरीबी रेखा के नीचे. गरीबी रेखा के नीचे 27 करोड़ फैमिली है, तो हम लोग पकड़ेंगे कि 27 लाख करोड़ गया. 27 लाख करोड़ और 2 करोड़ बोले तो 29 करोड़. हमारा जीडीपी है 47 करोड़. तो आउट ऑफ जीडीपी 47 करोड़ दे आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट 29 करोड़. हाउ इट इज पॉसिबल? सो दिस इज जो कुछ बात कर रहे हैं ना, देखो राहुल गांधी को तो कुछ समझता नहीं, अनपढ़ गवारे हो. मैं आपको बोल रहा हूँ, कुछ आता ही नहीं. वो आलू से सोना निकालने की बात करता है. फटाफट फटाफट फटाफट. अरे क्या चालू है? टकाटक टकाटक टकाटक. बच्चों का खेल है क्या? He is not a serious politician. In fact, he is not fit for politician. उसको जबरदस्ती लाया है. उसका एक्चुअली काम है कि बैंकॉक में जावे, मजा करे, ऐश करे, धमाल करे, जियो अपनी जिंदगी, जो चाहिए हो वो करके. उसके माँ ने जबरदस्ती उसको ढकेला है पॉलिटिक्स में. उसको कुछ इंटरेस्ट नहीं है. सफेद टी शर्ट और नीली जीन्स पहनकर घूमना, यही उसका शौक है. वो शौक उसने इटली में जाके, बैंकॉक में जाके पूरा करे. पॉलिटिक्स इज नॉट हिज कप ऑफ टी. कुछ भी बात कर रहे हैं जी. तो सर जहां तक के तमिलनाडु का प्रश्न है उसके बारे में छोटी सी एक बात जरा बात कर लें.
A message to the guys in the production team: you can remove the scroll, please. Please remove it, because this is embarrassing. I have to say it right now in front of the guest. Please remove the scroll. Please remove it. Thank you, sir. The thing is, there's a small little thing that I would like to ask you. This question usually Pradeep ji puts to various people. Tamil Nadu mein, there is a huge vacuum left by the sad demise of Jayalalitha ji. Has the BJP moved into that space? Has that happened? You asking me? Yeah, I'm asking you, sir. See, what happened, initially Congress was ruling over Tamil Nadu. Yes. And Congress being a national party, there was a fight between a national party and a Regional party. regional party, Yes. that is DMK. Yes. When DMK was divided into two parts, and when Jayalalitha, Rather, MGR formed the Anna DMK. MGR formed Anna DMK. Yes. yeah, of course, Yes. MGR, but especially when Jayalalitha also took over Ji. AIADMK, the fight was between these two parties. One is DMK and one is AIADMK. Yes. People had no choice. Both have the same principles. Principle of Dravida Rajakaran, Dravidian politics, and limited to the state only. They had no vision. They had no thinking of the nation as a whole, nothing. So, the voters also had no choice. Either they have to vote for A or B. Both A and B are cousin of each other. Ji. Sometime DMK, sometime AIADMK, Ji. sometime AIADMK, or next time DMK. But both were looting Tamil Nadu. And has lot of- Dravidian politics, the old Dravidian politics, anti-North, anti-Hindi, anti-upper caste Hindus, anti-everything, has that reached its zenith now? Do you think there is a counter-reformation taking place in Tamil Nadu? Avadut Varsha? After independence and once Dr. Babasaheb Ambedkar has written the Constitution of India, Yeah. see, last 75 years the casteism has reduced to quite a big extent. Yes. And the new generation, either from south or north, east or west, they have realized that development is required rather than caste-based politics. So the people from Tamil Nadu also, they learned that both DMK and AIADMK, they are cheating them. They are cheating them. And that is the reason why there was a vacuum created after Jayalalitha's death. And that particular vacuum is filled by Bharatiya Janata Party under the leadership of Annamalai. Wag Sahab, the most important thing today is Modi ji ki tapasya. Modi ji tapasya has shaken the opposition. Opposition went to the election commission, Wag Sahab, but they didn't get any relief from there. They said, stop the media from telecasting what Modi is doing. Oh, tapasya is not required now. Election ke beech mein kyun? It's going to influence the elections in the 7th phase. They tried everything. Why is Modi ji's tapasya hurting the opposition so much? Mamata Banerjee बोल रही है AC रूम में बैठ के तपस्या कर रहे हैं. मल्लिकार्जुन खड़गे से ये घर से घर पे कर सकते थे, वहां जाके कन्याकुमारी करने की जरूरत क्या है? Wag Sahab, why is the tapasya disturbing the opposition, India Alliance? You are asking a right question to a wrong person. You should ask this question to Kharge and Rahul Gandhi and other opposition leader. You should ask me why Modi ji is doing tapasya. Modi ji is doing tapasya. What is tapasya or what is dhyan? Dhyan is अपने मन के अंदर देखना है. जैसा लायन है वो 100 कदम आगे जाने के बाद पीछे मुड़ के देखता है, उसको सिंहावलोकन कहते हैं. उसी प्रकार से once you finish 1 year or 2 years of your life, you have to sit somewhere and think what all the things you have done, what you are going to do, what mistakes you have done, how to avoid those particular mistakes, what is your vision in next time. This is called as a planning, and the planning you can do it at many places. One of the way to do the planning is to do the ध्यान. तो ध्यान जब हम लोग करते हैं तो हम लोग सभी चीज को भूलकर हमारे मन के अंदर का जो एक आत्मा है उसको चेतावनी देते हैं. एंड दिस इज व्हाट मिस्टर मोदी जी इज डूइंग. एंड मोदी जी बीइंग अ धार्मिक पर्सन
उन्होंने ध्यान किया तो बिगड़ा क्या है किसी का? आप करो यदि मोदी। और वैसे तो राहुल जी जाते हैं ना विपश्यना को, बैंकॉक में जाते हैं ना विपश्यना को, अभी विपश्यना को जाते हैं कि शयनाक को जाते हैं वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन 11-11 12-12 दिन बीच में गुल हो जाते हैं, इलेक्शन होने तो गुल हो जाते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की इलेक्शन होने तो गुल हो जाते हैं, स्टेट इलेक्शन होने तो गुल हो जाते हैं, पार्टी के इंटरनल इलेक्शन होने तो गुल हो जाते हैं, तो वो भी ध्यान धारणा करते हैं ना। अभी क्या करते हैं, कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, किसके साथ करते हैं वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन राहुल गांधी सुधा विपश्यना करते हैं 10-10 11-11 दिन। Waq Sahab, do you think that I and Bajaj Sahab, we always discuss that Congress and the India Alliance lost an opportunity when they never went to the Ram Mandir Punar Nirman. They never went even after that to visit Ram Temple. 500 साल के बाद जो मोदी जी कह रहा है, it's a historic thing that this government has done. Never achieved for 500 years. They lost an opportunity. और do you believe, क्या आपको लगता है कि ये minority politics ने इनको रोक दिया है? Total India Alliance के जितने leaders हैं from going to Ayodhya, Punar Ram Mandir. Waq Sahab. Pradeep ji, this is my statement that Congress is no more Congress. Congress is a group of communist, Maoist and Naxalites. What happened that they lost Tripura, the leftists lost Tripura, they lost West Bengal, and they are left over only at Kerala in some places. They are also going to get vanished soon. So they have no place and they have no masses. So they want to grab the old grand party, because Congress has got a base. Congress has got a structure. Congress is spread all over India, maybe in a small way, but still it is in existence and much better than that. So these communist people have entered into Congress and they have taken what should I say, control of Congress. If you see the manifesto of Congress, if you see the policy of Congress, all these policies are totally ruled and drafted by communists. So Communist Party is equal to Congress Party is equal to Communist Party. And once this is established, you will get answers to all your questions, because communists are anti-dharma. And in India, they are anti-India Hindus. So they will always work in such a way to diminify Hindus. हिंदू लोगों को कम दिखाने के लिए जो कुछ करना है वो कम्युनिस्ट हमेशा करते रहेंगे। राम सेतु नहीं है, वो तोड़ने के लिए उन्होंने परमिशन दे दी। उन्होंने राम, ये तो अस्तित्व में ही नहीं है, ये तो काल्पनिक चीज है, ये इसके बारे में बात की। उन्होंने राम जन्मभूमि का जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो दावे चल रहे थे वो रोकने की कोशिश की, वहां उन्होंने गलत एफिडेविट दे दिया। उन्होंने क्या नहीं किया, बहुत बड़े बड़े कांग्रेस के नेता राम जन्मभूमि होना नहीं चाहिए इसके लिए वो कतार में खड़े थे कि नहीं? आप पूछिए। सो not only they have lost an opportunity to come back into the politics, they had little chance to come back into the Indian politics. लेकिन अब्दुल वाक साहब, particular rays of hopes are vanished now. ये बात तो ठीक है कि the old welfare state, commanding heights of the economy, all that is reflected in the Congress manifesto. There is no doubt about it. लेकिन सर ये बताएं, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, बाकी हर जगह से भी जो खबर आ रही है वो ये है कि 2019 और 2024 में बहुत बड़ा फर्क है। फर्क ये है कि 2019 में बालाकोट स्ट्राइक थी। जितने भी लोग थे जिनसे भी हम लोगों ने बात करी, हर एक ने ये कहा मोदी जी अकेले हैं जिन्होंने पाकिस्तान को घर में घुस के मारा। लेकिन राम मंदिर का इतना ज्यादा प्रभाव नहीं दिख रहा मुझे। हो सकता है कि मैं गलत हूं, आई मे बी रॉन्ग। इसके बारे में कुछ बोलेंगे सर अवधूत वाक साहब? नहीं, देखिए, राम मंदिर का प्रभाव है, चांद्रयान का प्रभाव है, G10 का प्रभाव है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन गई है उसका प्रभाव है। कितने प्रभाव अलग अलग है, वो सभी प्रभावों को मिलकर जो आना है वो आपको 4 जून को समझेगा। लेकिन मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, हम पकड़ लेते हैं किसी का भी प्रभाव नहीं है, तो आप मुझे बताइए कि इंडिया आघाड़ी का क्या प्रभाव है? उन्होंने क्या किया
जिसके लिए मैंने उनको वोट देना चाहिए. You give me one reason why I should vote against BJP, I should vote against Narendra Modi, and I should vote for Rahul Gandhi. Tell me one reason. Because they are promising so many things, that's it. Okay. That's it. तो प्रॉमिसिंग, आपको क्या लगता है राहुल जी, आप है, प्रदीप जी है, मैं हूं, हम लोग इतने सर मेरा नाम राजीव है सर. राहुल. सॉरी, अरे प्रदीप जी, राजीव जी, हम लोग इतने मूर्ख है क्या कि हम लोग इसके ऊपर, ये जो फ्रीबीज है उसके ऊपर हम लोग विश्वास रखें. और भारत की जनता इतनी मूर्ख नहीं है राजीव जी, इतनी मूर्ख नहीं है. लोगों को मालूम है क्या हो रहा है. यदि आप लोगों को बोल रहे कि मैं हर औरत को 1 लाख रुपए महीने का देता हूं, इसका मतलब है 1 लाख रुपए साल का सर, महीने का नहीं है, साल का. साल का ही मैं कह रहा हूं. इसका महीना, इसका मतलब है 8,000 रुपए महीने. 8,500 रुपए साल आप महीने के. 8,000 रुपए 12×8 तो 8,000 रुपया 8,333 रुपीज होता है. नहीं तो 8,666 जो कुछ है. चलो 8,000 रुपया, 8,000 रुपया कुछ लोगों को मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से पगार मिलता है. तो आप 8,000 रुपए यदि आप किसी को देंगे तो लोग काम क्यों करेंगे? आप मुझे बताइए ना, लोग काम क्यों करेंगे? लोग काम नहीं करेंगे. आप वेस्ट बंगाल में जाइए. वेस्ट बंगाल में हमने जो वेलफेयर स्कीम चालू की थी, ममता बनर्जी ने उसको रोक लगाया. लोगों को क्या चाहिए? 5 लाख रुपए तक का फ्री जो मेडिकल फैसिलिटीज हम लोग दे रहे आयुष्मान भारत की तरफ से, वो उनको चाहिए. लोग भीख मांगने के लिए नहीं आए कि आप हमको फ्रीबीज दे दो और हम लोग घर में बैठ के काम करेंगे. लोगों को नहीं चाहिए. लोग स्वाभिमान से जीना चाहते हैं. भारतीय जनता स्वाभिमानी है. वो कहते हैं कि हमको अपॉर्चुनिटी दे दीजिए. और अपॉर्चुनिटी जो मिली है नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, वो इतनी है कि आज मुझे नहीं लगता कि कोई अनएम्प्लॉयड है. अभी यदि अनएम्प्लॉयड नहीं है कोई, देखो, यदि अवधूत वाक को लगता है कि मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊं महाराष्ट्र का तो ही मुझे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, नहीं तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक रिपोर्टर है, उसको लगता है मैं चीफ एडिटर बन जाऊं तो ही मुझे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ऐसा तो नहीं चलेगा. लेकिन जिसको उसकी उनकी जो कुछ योग्यता है, उनके योग्यता के अनुसार सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध है. जिसको नहीं करना है उसके लिए तो हम लोग उनको जबरदस्ती तो नहीं दे सकते. लेकिन सर, अकॉर्डिंग टू द वेरियस फिगर्स व्हिच आर अवेलेबल, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट फिगर्स एंड इंक्लूडिंग फिगर्स फ्रॉम CMIE, India has never experienced this level of unemployment for the last 40 years. This is what has been said. Abdul Waq sir. अभी ये रिपोर्ट किसने बनाया है, कैसे बनाया है, मुझे मालूम नहीं. लेकिन मैं आपको एक फिगर देता हूं. एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, ये तो कोई किसी का पीपी प्रोविडेंट फंड जो यूं ही नहीं काटा जाता. 1,800 रुपया 12% से आपको काटना पड़ता है, प्लस आपके तरीके से 1,800 रुपया. इसका मतलब 3,600 रुपया प्लस 100 रुपीज अदर एक्सपेंसेस लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, 3,900 रुपया आपको हर महीने में डिपॉजिट करना पड़ता है. तो ही एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड एक बढ़ता है. एवरी मंथ 3,900 रुपीज द एम्प्लॉयर हैज टू डिपॉजिट with employment provident fund. You know that 180% increase in employment total provident fund in last 5 years. ये तो ऑफिशियल फिगर है. तो जिनको ऑफिशियल एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, जिनका एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड कट हो रहा है, उनकी बढ़ोतरी जो हो गई है वो 180% हो गई है, ऑलमोस्ट डबल. दूसरी बात है कि इतने रोड्स बन रहे हैं, वो आसमान से तो गिरते नहीं, किसी ने बनाना चाहिए. अभी आपका सीलिंग बन रहा है, वो सीलिंग में तो लेबर लगते हैं, वो सीलिंग तो आसमान से गिरता नहीं. इतने हाईवेज बन रहे हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, इतना कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप हो रहा है, माइनिंग सेक्टर डेवलप हो रहा है, सर्विस सेक्टर डेवलप हो रहा है, वो विदाउट एम्प्लॉयमेंट. तो आप जरा समझने, आप ही समझने की, जब इंडिया का जीडीपी बढ़ रहा है, जीडीपी ऐसे ही बढ़ता है विदाउट एम्प्लॉयमेंट. जीडीपी अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड, CMIE, which is what is being quoted because the labor ministry has stopped publishing employment figures. They say the unemployment rate has increased to 8% in January 2024. Rural unemployment has also gone up. And unemployment rate increased in February alongside a rise in labor participation rate as well as employment rate. Labor participation rate in India climbed to 41.4% in February. That's what they say, sir.
So मुझे कहना है कि कांग्रेस के राज्य में हर युवक हाथ में 4-4 अपॉइंटमेंट लेटर लेके बैठा था और सभी को एम्प्लॉयमेंट थी। ऐसी तो बात नहीं थी। अनएम्प्लॉयमेंट तो हमेशा होगी। अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, अमेरिका में भी है, यूरोप में भी है, डेवलप्ड कंट्रीज में भी है। उसके लिए अलग अलग रीजंस होते हैं। एक तो हर एक आदमी की अपेक्षाएं ज्यादा होती है। उनको लगता है कि जब तक मुझे ये नहीं मिलता तब तक मैं काम नहीं करूंगा। जब तक मेरे घर के बाजू में नौकरी नहीं मिलती मैं काम नहीं करूंगा। जब तक मुझे एक बड़े कंपनी में नौकरी मिलती मैं काम नहीं करूंगा। जब तक मैं सरकारी नौकरी नहीं मिलती मैं काम नहीं करूंगा। जब तक ये पगार नहीं मिलता काम नहीं करूंगा। दिस इज नॉट कॉल्ड एज अनएम्प्लॉयमेंट, दिस इज अ फोर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। Sharad Pawar ji, your favorite subject, Sharad Pawar ji says that he believes that 400 plus कहां से आएंगे, 400 पार कैसे होगा? 400 पार हो ही नहीं सकता है। बोले बीजेपी मुझे आंकड़ा बताए 400 आप कहां पार कर रहे हैं। He reminds everybody, प्रफुल्ल पटेल 2004 में मेरे पास आए थे और कहा देखो इंडिया शाइनिंग हो रहा है एंड दे आर गोइंग टू विन, लेट अस जॉइन द बीजेपी। शरद पवार जी told then also he told Praful Patel they cannot convert India shining into votes, ये नहीं होगा। He says even today I am telling you ये 400 पार नहीं होगा। शरद पवार जी, he is absolutely confident बाग साहब। शरद पवार इज अ स्पेंट फोर्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। जिस पार्टी को 4 खासदार खुद के चुन के आने की मुसीबत है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के 400 खासदार कैसे जीत के आएंगे सवाल पूछने का उनको कुछ अधिकार नहीं है। उन्होंने पहले अपने लड़की को जिता के लाने दो बारामती में और 2-4 खासदार बनाने दो, वही बहुत बात हो गई। अब शरद पवार को इतना बड़ा महत्व क्यों देते मुझे मालूम नहीं है। आप जरा 2019 की पार्लियामेंट की लिस्ट देखो, उनसे बड़ी कौन सी पार्टी है मैं आपको बताता हूँ। उनसे तृणमूल कांग्रेस उनसे बड़ी है कि नहीं? देखो उसके बाद में वो तेलंगाना की पार्टी है, वो बड़ी है, उनके बीएसआर उनसे बड़ी है। अरे बहुत सारी पार्टी उनसे बड़ी है। क्या है उनमें? 2-4 खासदार किधर से पकड़ के लाने का और बोलने का मैं राष्ट्रीय नेता हूं। अभी तो वो राष्ट्रीय तो छोड़ो, उनको तो ऑफिशियली स्टेट इलेक्शन कमीशन ने एक टेम्पररी सिंबल दिया है। हिज पार्टी इज नॉट इवन रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी। What are you talking about? So why to give importance? And I'm not here to go on giving explanation to Sharad Pawar's each and every step. Sir, so finally, I don't think it is important. So finally, on the 4th of June, in your opinion, the BJP is getting over 370 seats. No. So, Totally 411 to 413. 411 से 413, उसमें भारतीय जनता पार्टी 370 के आसपास रहेगी। लेकिन मुझे हमारा जो पहला अनुमान था कि हमारे जो पार्टनर्स है वो अप्रोक्सीमेटली 30 जीतेंगे, अभी हमें लगता है कि वो 40 के ऊपर जीत रहे। Fantastic. No, I just wanted to ask him about yesterday. Fine. आप पूरे महाराष्ट्र में कल वाक साहब एक आंदोलन छेड़ा था जितेंद्र अवार्ड मनुस्मृति वाले इशू में। मनुस्मृति going to be incorporated into the education system as per Jitendra Award ji. In the process, in is eager to highlight that probably he says he told the Ambedkar ji और उसका आपने total पूरे मोर्चा पूरे महाराष्ट्र में। Now how do you see both these controversies, Manusmriti and your protest later on with respect to Baba Saheb Ambedkar ji? देखो ये कंट्रोवर्सी है ही नहीं। कंट्रोवर्सी किसने खड़ी की? कंट्रोवर्सी अपोजिशन पार्टीज ने खड़ी की। There was no statement from any of the political parties which are in NDA. No statement from any of the leaders from NDA about Manusmriti and adding some shloka of Manusmriti in the curriculum of school education. But still, I don't know. Somebody has spread this particular rumor, and based on the rumor, जितेंद्र अवार्ड जो एक नंबर का नौटंकी नाटकबाज है, नौटंकी नाटकबाज, उसने आंदोलन खड़ा किया। देखिए आंदोलन खड़ा किया तो ठीक है, किसके खिलाफ किया? कि मनुस्मृति का जो श्लोक है वो करिकुलम में आना नहीं चाहिए। ठीक है, हम भी मानते हैं ना, हमने किधर मना किया? But is there something wrong in it? Just strictly between you and me, why should the Manusmriti not be studied? नहीं, देखिए क्या होता है, it's a matter of study. कोई भी चीज स्टडी करनी है नहीं करनी है तो एक आम लोगों का राय साथ में आने की जरूरत है। और एजुकेशन सिस्टम में हम लोग बखेड़े खड़े नहीं करना चाहते, क्योंकि दिस इज गोइंग टू यूज्ड बाय अ वेरी यंग माइंड्स, सो वी शुड बी डबली श्योर अबाउट इट।
आप बड़े होने के बाद आपने क्या चाहना है, क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, वो बात अलग है, लेकिन वी डोंट वांट एनी प्रॉब्लम इन एजुकेशन सिस्टम. तो But Abdul एजुकेशन Wahab सिस्टम Sahab, just a small little thing. I know, but you know when you teach kids about the Second World War, you're going to talk about Adolf Hitler. You are going to talk about the Nazi Party. You're going to talk about Mussolini and the fascists. So how can you get rid of that? My point is, what's wrong in teaching kids? Hey, listen, this is how we have evolved. I mean, I don't see a problem in that. Why should people get so emotional about it? Anyway, that's my opinion. राजीव जी, आई एम विथ यू, लेकिन क्या है मालूम है क्या, राजकारण में भी अस्पृश्यता है, राजकीय अस्पृश्यता, पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी जिसको कहते हैं, कि किसी किसी सब्जेक्ट को इतना इम्प्योर करके रखा है लोगों ने कि जो प्योर है. मैं मनुस्मृति के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे चीजों के लिए बात कर रहा हूं. हमारे जो पहले जो सत्तारूढ़ पार्टी के लोग थे, उन्होंने इतना कहर कर दिया है कि स्वतंत्रवीर सावरकर को माफीवीर कहने के लिए बात कर रहे. सर स्वतंत्रवीर सावरकर के जो भाई थे, महात्मा गांधी की हत्या होने के बाद जब पूना में वो रहते थे, सगे भाई थे, उनको पत्थरों से मार गिराकर उनको ही वॉज किल्ड बाय हुम. गांधी जी की हत्या के बाद जो कुछ हुआ वो तो गांधीवादी ही थे. गांधी जी ने तो अहिंसा कही थी, तो लेकिन गांधी जी का नाम लेने वाले लोगों ने पत्थर से लोगों को मारा. तो गांधी जी का नाम लेने का, लेकिन हिंसा करने का, ये तो सब that's a long subject. राजनीति है ही ना. How Brahmins were targeted, especially around Pune and elsewhere after Mahatma Gandhi's तो आपको मालूम है सब. तो ये दोहरी राजनीति है, गांधी जी का नाम लेने का, लेकिन गांधी जी के विचारों के खिलाफ काम करने का एक कांग्रेस की साजिश है. और उन्होंने गांधी का नाम अपना खानदान बढ़ाने के लिए लिया है. अपना जो एक परिवार है, नेहरू गांधी फैमिली में, उन्होंने गांधी का नाम लिया और गांधी के नाम का यूज करके उन्होंने राजनीति की, इतनी बरस सत्ता की. नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि उनमें इतनी ताकत थी, योग्यता थी कि देश के ऊपर राज्य करे. उनसे बहुत बड़े बड़े नेता थे, सुभाष चंद्र बोस, उसके बाद में वो तो चलो जल्दी चले गए. उसके बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, बहुत सारे बड़े बड़े लोग थे. डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जैसे आदमी भारत के पंतप्रधान हो सकते थे. उनको पंतप्रधान तो छोड़ो, मिनिस्टर तो छोड़ो, 2 दफे कांग्रेस ने हराया. तो ये कांग्रेस की जो राजनीति है, महात्मा गांधी ने अच्छी तरह से समझ ली थी. इसके लिए उन्होंने कहा था कि जैसे स्वतंत्र मिलेगा, कांग्रेस शुड बी डिसॉल्व्ड. बट राइट, थैंक यू सो मच सर. अब्दुल वाहब साहब, great pleasure as always talking to you. Really and truly wonderful. You came after a long time. And all the very best for the 4th of June, sir. Thank you very much. Har Har Mahadev. And at the moment with us, I think he's been waiting, Mr. Hemant Kamble of the MNS. Hemant Kamble sahab, namaskar. Namaskar. How are you, sir? How are you? I am absolutely fine. What about you? Really and truly wonderful. Why can't I see Mr. Hemant Kamble? I can hear him. I can hear that wonderful voice of his, but why can't I see him? I am able to see him now. Right. So Hemant Kamble sahab, ये जो जिस विषय के बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे, स्पेशली विद रिगार्ड टू आवर फ्रेंड एंड ही इज वेरी गुड फ्रेंड जितेंद्र आवाड साहब, वो उठा करके कुछ मनुस्मृति का उन्होंने कोई पोस्टर फाड़ना चाहा, उसमें अम्बेडकर साहब की भी तस्वीर फट गई और बड़ा बखेड़ा उस पर खड़ा हो गया कुछ. हाउ डू यू सी इट? डू यू थिंक इट्स वर्थ डिस्कसिंग इट ऑल और डू यू थिंक वी शुड मूव ऑन? आप बताएं. नहीं, ये टॉपिक पे मैं बात नहीं करना चाहूंगा. एक तो कैसे ना कि हर बात की हम बाल की खाल खींचने की जरूरत नहीं होती है. अभी जितेंद्र आवाड इतने तो समझदार है कि उन्हें किसकी तस्वीर फाड़नी है और किसके प्रोटेस्ट करनी है. वो प्रोटेस्ट करने गए थे मनुस्मृति की, और मनुस्मृति का जो करिकुलम में इन्वॉल्व किया है या उसको इंक्लूड किया है उसकी, अब उनसे गलती से फट गया है. लेकिन एक जिम्मेदार पॉलिटिशियन होने के नाते उन्होंने इस बात की तो ये करनी चाहिए थी कि भाई मैं क्या फाड़ रहा हूँ, कौन सी चीज को फाड़ रहा हूँ, किसका प्रोटेस्ट कर रहा हूँ. अब यही अगर दूसरे कोई करते तो जितेंद्र आवाड अब तक क्या कर चुके होते. तो कुछ हमारे मतलब कुछ पॉलिटिकल सर्कल में ऐसे लोग हैं जो ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, जिन्हें पब्लिसिटी की बहुत जरूरत होती है,
और पब्लिसिटी के लिए वो किसी भी हद तक पहुंचते हैं, उसमें से एक जितेंद्र रावण है। तो मैं नहीं समझता हूँ उनके बारे में कुछ मुझे बात करनी चाहिए, बिकॉज वी हैव सो मेनी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स टू डिस्कस, सो व्हाई शुड वी वेस्ट आवर टाइम ऑन जितेंद्र रावण। तो हेमंत काबले साहब 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएंगे इस इलेक्शन जी के। उसके बाद जी। आपकी असली लड़ाई शुरू होगी। आपका जो असली मकसद है वो है महाराष्ट्र के लिए काम करना। महाराष्ट्र असेंबली विल बी द नेक्स्ट टारगेट। सो व्हाट विल बी योर प्रायोरिटी सर? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की, राज ठाकरे साहब की असली प्रायोरिटीज तब सामने आएंगी, और वो क्या होंगी उसके बारे में जरा बताएं प्लीज। सी इन गुड़ी पाड़वा रैली ऑलरेडी अनाउंस राज ठाकरे साहब कि आप जो है विधानसभा की तैयारी शुरू कर दो जी। और आपको पता होगा कि जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो कोंकण रीजन से हमने वी हैव ऑलरेडी डिक्लेयर मिस्टर अभिजीत पानसे एज आवर कैंडिडेट फॉर कोंकण रीजन। सो आप देखिए कि हमने तो हमारी तैयारी शुरू कर दी। फिर हमारे साथ कौन आता है, कौन हमारे साथ गठबंधन में आता है, ये सब हम बाद में सोचेंगे, लेकिन फिलहाल तो हमने हमारी तैयारी शुरू कर दी है। तो आने वाले असेंबली इलेक्शन हो या ये एमएलसी के इलेक्शन हो, तो हम हर तरह से अब तैयारी में उतर चुके हैं। आपने बहुत हाईलाइट कर दिया प्रॉब्लम्स कोंकण ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी में। आपने कहा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन सिस्टम, एवरीथिंग हैज फेल्ड वेयर कोंकण इज कंसर्न्ड। तो ये व्हाट न्यू थिंग्स आर यू गोइंग टू इंट्रोड्यूस एंड कन्विंस द पीपल दैट अभिजीत पानसे जी को वोट मिलना चाहिए एंड वी आर द राइट पीपल हुम वी शुड वोट? सी प्रदीप जी, लास्ट 3 अटेम्प्ट मतलब 3 बार शायद निरंजन डावखरे जी वहां से उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत कर आते हैं। क्या आपने कभी सुना है या कभी कोई पढ़ा है कि निरंजन डावखरे जी ने ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के जो प्रॉब्लम्स है, जो स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम है, उसके लिए कोई आवाज उठाई? एक बार एक इंसिडेंट मुझे बताइए। बिल्कुल। इतने सारे प्रॉब्लम्स का एजुकेशन सिस्टम में है, किस बारे में बात की? मैं अभी अभिजीत पानसे की जो ये है मैं गिनाता हूँ। स्कूल के बच्चों का जो बस्ते का जो वजन है वो कम करने के लिए जो काम किया है वो अभिजीत पानसे जी ने किया है। वो खुद एक मतलब फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए, उनकी जो फिल्म्स है, रेगे हो या उनकी एक वेब सीरीज भी बहुत पॉपुलर हो गई थी, उन्होंने जो भी सब्जेक्ट मतलब उस पर काम किया है वो बड़ी बारीकी से काम किया है। उनका जो उनके फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो एजुकेशन से रिलेटेड है। तो हमें एक एक्सपर्ट की जरूरत है एजुकेशन सिस्टम में काम करने के लिए, एंड मिस्टर राज ठाकरे हैज सिलेक्टेड very cleverly the candidate for Gadget's constituency, and we are moving with him. जी हेमंत जी, आज के पूरे टॉपिक आज है कि मोदी जी तपस्या किस प्रकार से कर रहे हैं। द इंडिया अलायंस वेंट एंड कंप्लेन टू इलेक्शन कमीशन, वहां से कुछ हुआ नहीं है। फिर इंडिया अलायंस ने कहा एटलीस्ट प्रेस कवरेज रोक दो, जो मोदी जी की तपस्या है, इट विल इन्फ्लुएंस द इलेक्शन दैट इज गोइंग टू हैपन द 7th फेज। तो क्या मोदी जी के तपस्या इतना ऑपोजिशन के लिए तकलीफ होना चाहिए? हाउ डू यू सी द एंटायर थिंग? मोदी जी हैज ऑलवेज बीन डूइंग इट, प्रतापगढ़ 2014, 2019 केदारनाथ और अभी कन्याकुमारी। हाउ डू यू सी द एंटायर एपिसोड, इंडिया अलायंस का रिएक्शन और मोदी जी की तपस्या? पिछले 2 महीनों से जो एग्जॉस्ट हो गए थे मोदी जी, शायद वो तपस्या करने गए होंगे, तो उसमें इतना ऑब्जेक्ट कर। अब मोदी जी तपस्या कर रहे हैं, इसका मतलब वो कोई मतलब ब्रह्मास्त्र तो मांग नहीं रहे ब्रह्मा जी से, उनको तपस्या करनी है तो कर ले दीजिए। इंडिया अब अभी देखिए इलेक्शन का जो आखिरी दौर है, कल इलेक्शन होगा तो खत्म हो गया, तो आपको उसकी जरूरत क्या है? और सेकंड थिंग, मीडिया कवरेज रोकना, ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है कि किस तरह से किसको कवरेज मिल रहा है, कि कौन से पब्लिसिटी स्टंट है, क्या है, उसको बाइफरकेट करना और उसको उस पर एक्शन लेना या उसके ऊपर जो भी टीका टिप्पणी करना, वो तो इलेक्शन कमीशन का काम है। मुझे लगता है कि जो भी बुनियादी जो प्रॉब्लम्स है उस पर हम लोग डिस्कस करें। उस पर ये जो पिछले 10 सालों में अपोजिशन जो एक कारगर जो सिद्ध नहीं हो रहा है ना, इसका कारण ही है इनको जिन मामलों पर इनको बात करनी चाहिए उन मामलों पर बात नहीं करते। ये सावरकर जी के बात करेंगे, ये दूसरे मुद्दों पर बात करते हैं। आप असली मुद्दों पर आइए और असली मुद्दों पर घेर लीजिए। अब देखिए 2014 से लेकर 24 ये दो टर्म तो मिल गए मोदी जी को, तीसरी टर्म के लिए जा रहे हैं। और मैं पिछली बार भी कह चुका हूँ कि पिछले 30 साल की राजनीति ऐसी है
कि तीसरी टर्म किसको मिलती नहीं है, तो मोदी जी को तीसरी टर्म आपको देनी नहीं चाहिए, तो आपको यूनाइटेडली काम करना चाहिए था। तो इंडिया जो आघाड़ी जो भी है उनको मुझे लगता है बुनियादी मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए थे, ना कि मोदी जी क्या ध्यान लगाते हैं या मोदी जी और कहाँ पर क्या करते हैं। ये अपोजिशन को थोड़ा सा मैच्योर्ड होने की जरूरत है। हेमंत जी, यू मन से राज ठाकरे साहब कंटिन्यूसली पूरे देश को बोल रहे थे, महाराष्ट्र को बोल रहे थे कि फरवरी के बाद अकाल का एक प्रॉब्लम है, पानी की समस्या होने वाले पूरे महाराष्ट्र में, स्पेशली मराठवाड़ा, विदर्भ और ऐसे जगह पर जहां पानी की समस्या है। नाउ दैट हैज रियली टेकन अ बिग टोल नाउ। Yes. आज ये है कि पानी है ही नहीं कहीं पर। When you say the rural area, Even there's no water at all. Even in Mumbai, Pradeep ji, There is. we are down to less than 10%. Do you think that the government सुना है, has the government really acted, has the government taken a correct stand? Where are we right now, हेमंत जी? Because सबसे पहले आवाज मन से और राज ठाकरे साहब ने उठाया था कि फरवरी के बाद ये तकलीफ होने वाले हैं। अब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई खत्म होने आया है। Have we acted on that? देखिए प्रदीप जी, राजीव जी, कैसे है ना कि हम पॉलिटिक्स में है या सभी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इन्हें शाश्वत काम करना चाहिए, उनको मतलब कंस्ट्रक्टिव काम करना चाहिए। आप मतलब जब पानी की किल्लत होती है तब आप अगर टैंकर पहुंचाते हो तो ये आपका कंस्ट्रक्टिव काम नहीं हुआ। आपको जो काम करना है कि आने वाले अगले 20, 30, 40 साल में जो प्रॉब्लम्स होनी है होने वाली है, इसके लिए जो सोल्यूशन निकालना है उस पर काम करना पड़ेगा। ये टैंकर आप कहाँ तक पहुंचाओगे और टैंकर को पानी कहाँ से आएगा? जब पानी की किल्लत पूरे महाराष्ट्र में है तो आप पानी, ये टैंकर का पानी कहाँ से लाते? ये तो मेरा सवाल आपने पिछली बार जो वसई विरार में जो हुआ था तभी मैंने पूछा था कि अगर पानी की किल्लत है, टैंकर से पानी अगर आप वहां पर पहुंचा रहे हो तो ये पानी आता कहाँ से? ये पानी की क्वालिटी क्या है? और अगर वो पानी ठीक है तो वही पानी पाइप्स में आ सकता है, वाटर सप्लाई में आ सकता है। अगर टैंकर्स के लिए पानी अवेलेबल उपलब्ध है तो सबके लिए होना चाहिए ना सर। देखिए कैसे ना, इस कंट्री हमारी आजादी के बाद जो पहले भाखड़ा रंगल बना, तो तभी बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक प्रपोजल रखा था कि नदी जोड़ो, जिसको अटल जी ने भी उसको प्रपोज किया था, उसको आगे बढ़ाया था। लेकिन हमारे यहाँ पर जिस तरह की राजनीति पिछले 20-25 सालों से हो रही है, तो कंस्ट्रक्टिव कामों से कम ये भावना प्रधान मुद्दे जो होते हैं, इमोशनल जो पॉइंट्स होते हैं या मुद्दे होते हैं, उन पर ज्यादा जोर दिया जाता है। तो मुझे लगता है वोटर्स हो या जनता हो, इनको मैच्योर्डली अब सोचना पड़ेगा कि भाई हम किन मुद्दों पर पॉलिटिकल पार्टी को वोट करेंगे। हमने आपके सामने एज अ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का मैं रिप्रेजेंटेटिव थे, आपके सामने हमने महाराष्ट्र का पूरा विकास आराखड़ा रखा था, डेवलपमेंट प्लान रखा था। तो ये प्लान आपको पसंद नहीं आया, लेकिन लोगों की जो इमोशनल बातें वो पसंद आती है, तो उसके फल भुगतने पड़ेंगे। सो वोटर शुड थिंक पॉजिटिवली एंड उसको ठीक तरह से इनको सोचना पड़ेगा अभी। सर, as we have discussed so many times, finally you will get exactly what you vote for. You're not going to get anything else. Whatever you vote for, you're going to get. Now over here, I would like to ask you this. Now that the results are going to be out on the 4th of June, 4 जून को भाई परिणाम आ जाएंगे, उसके बाद क्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की जो सबसे मुझे ऐसे लगता है अहम कैंपेन वसई विरार में पाइप्ड वाटर की जो कैंपेन है, क्या वो दोबारा शुरू होगी सर? हेमंत कामरे जी, कैसे है ना राजीव जी, हमारी कोई भी जो कैंपेन होती है या मूवमेंट होती है वो कभी स्टॉप नहीं होती है जी। आप देखिए कि 2012 में हमने शुरू की थी टोल की जो मूवमेंट, वो अब तक रुकी नहीं है जी। देखिए कैसे ना, लोग हमें सवाल पूछते हैं कि टोल का क्या हुआ, लेकिन जब हमारे हाथ में पावर ही नहीं है, लेकिन हम आवाज उठाते रहते, हम कोर्ट में जाते हैं, हम रास्ते पर उतर कर उसके लिए आंदोलन करते हैं। तो इसका जो भी इसके लिए जो सवाल पूछने हैं, तो जो पार्टियां पावर में आई और जिन्होंने तब तक लोगों को आश्वासित किया था कि हम अगर पावर में आते तो टोल बंद करेंगे, वैसे ही जो बुनियादी जरूरतें हैं, किसानों के प्रॉब्लम्स है, पानी की किल्लत है, रोजगार के प्रॉब्लम है, ये जिनके आप मैनिफेस्टो जिन्होंने दिए अभी आपको कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो इनको सवाल पूछने चाहिए जनता ने कि आपने ये हमें आश्वासित किया था कि हम ये देंगे, तो आप दे क्यों नहीं रहे?
फिर वो बीजेपी हो, शिवसेना हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, या फिर आप हो, आम आदमी पार्टी की हो, या तृणमूल कांग्रेस, कोई भी पार्टी हो, आप जो जो मैनिफेस्टो में आप लोगों को आश्वासित करते हो वोट के लिए, तो वो आपको पूरा करना है। उसके लिए प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। ऐसी कौन सी पार्टी दिखाएगी जिनके पास प्लानिंग है? आप अभी वोट मांगने गए 2024 से 29 के लिए, ये टेन्योर के लिए, तो कौन सी पार्टी के पास प्लान रेडी है कि हमें ये 5 साल के लिए, हम रोजगार के लिए ये 2 साल में ये काम करेंगे और ये किसानों के प्रॉब्लम के लिए ये काम करेंगे? कोई प्रॉब्लम, उनके पास कोई प्लान नहीं है। बस इलेक्शन लड़नी है, इलेक्शन जीतनी है, फिर पैसे बांटकर जीतनी है। कैसे आप साम दाम दंड भेद पूरी तरह यूज करो, और एक बार आप पावर में आते हो फिर आपकी मनमानी करनी है। इसी तरह से अगर राजनीति चलनी है तो मुझे लगता है कि आने वाले 50 सालों में भी इस देश का कुछ नहीं होगा। हेमंत जी, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। लगातार इंडिया अलायंस सब लीडर्स, पवार, शरद पवार साहब से लेके राहुल गांधी से लेके अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, सबका कहना है लोकतंत्र खतरे में, संविधान सब। आपको महसूस हो रहा कि संविधान खतरे में है? आज बीजेपी अमेंड करने वाले, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने वाले 400 प्लस इसलिए मांग रहे, इवन टू लास्ट डे राहुल गांधी जी, एवरीबॉडी इन द इंडिया अलायंस हैज बीन सेइंग दैट संविधान खतरे में। हाउ डू यू सी दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट, संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में? नहीं, बार बार मैं वही कह रहा हूं ना कि भाई संविधान बना है 1950 में, और अब देखिए कितने साल हुए, 74 साल तो हो गए। तो इतने सालों में बहुत बार अमेंडमेंट हुई उसमें, क्योंकि जो परिस्थितियों में संविधान बना था और अभी जो परिस्थितियां हैं, तो बहुत बार इसमें अमेंडमेंट कांग्रेस ने भी की है, कांग्रेस ने बहुत ज्यादा बार की है, फिर बीजेपी गवर्नमेंट की, फिर बीच वाली जो तीसरी आघाड़ी की जो सरकार उन्होंने भी की है। तो जब जब कुछ जरूरत होती है तो, लेकिन संविधान पूरी तरह बदलना ये किसी के बस की बात नहीं है। फिर बीजेपी चाहे 400 पार जाए या और कुछ जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है किसी को कि संविधान पूरी तरह बदल दे। ठीक है, संविधान के कुछ मुद्दे हैं ऐसे जिन्हें हमें अमेंड करना पड़ेगा, क्योंकि वक्त का तकाजा है कि कुछ बातें ऐसी है कि जो आज से 60-70 साल पहले अलग थी और अब अलग है। तो मुझे लगता है कि संविधान खतरे में है। इस तरह की इमोशनल कोड देकर जो मतदाताओं को जिस तरह से मिसगाइड किया जाता है, या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 400 पार का नारा दिया जाता है, ये दोनों बातें जो है ये इनके चुनावी जुमले होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वोटर्स को उतना जो प्रगल्भता से इसका जवाब देना पड़ेगा वोट बैंक से। वैसे भी सर 106 बार तो अमेंड हो चुका है कॉन्स्टिट्यूशन। वी हैव अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन 106 टाइम्स। इसमें क्या है? हाँ, तो वही तो बात मैं बोलना चाहता हूँ कि इसके पहले अमेंडमेंट इतनी बार हो चुकी है, और उसके बाद अगर कुछ मुद्दों पर अमेंडमेंट होती है तो मुझे लगता है उसके लिए इतना हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज है रिजर्वेशन को लेकर के बहुत हो हल्ला है हर जगह पे कि भारतीय जनता पार्टी रिजर्वेशन खत्म करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि इंडिया अलायंस वाले जो हैं वो आपकी रिजर्वेशन खत्म करके मुसलमानों को देना चाहते हैं। तो इज दैट ये स्तर जो है डिबेट का, आई थिंक इट हैज कम डाउन अ लिटिल बिट, वेरी फ्रैंकली, बिकॉज ऑन बोथ साइड्स ये जरा हास्यास्पद है। नहीं, ये दोनों, इंडिया आघाड़ी हो या एनडीए हो, ये दोनों ने पिछले कुछ महीनों में या सालों में जिस तरह से राजनीति का स्तर नीचे लेके आए, तो मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ियां जो है वो पॉलिटिक्स को किस नजर से देखेंगी, ये मेरे लिए बहुत चिंता की बात है। क्योंकि देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको बुनियादी मुद्दे हमारे क्या है। रोजगार बुनियादी मुद्दा क्या है हमारा, किसानों के लिए सुरक्षा, किसानों की सुरक्षा, या कुल किसानों के लिए जो स्कीम्स चाहिए, या महिला सुरक्षा का हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए, शिक्षा हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, मेडिकल एड, आरोग्य व्यवस्था हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। इन सब बातों को छोड़कर हम किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं? इन पॉलिटिकल पार्टियां, जो पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वहां के उनके अगर प्रवक्ता, उनके नेता अगर मोदी जी को पुरी के जगन्नाथ से बड़ा मानते हैं या उनके भक्त बोलते हैं, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को अपने नेताओं को और प्रवक्ताओं को समझाना पड़ेगा कि इतना अहंकार ये ठीक नहीं होगा। जी करेक्ट। तो यहाँ पर एक चीज है, आई नो दिस इज अ सब्जेक्ट क्लोज टू योर हार्ट। जी कुछ बोल रहे थे आप, प्लीज गो अहेड, फिनिश कुछ बोल रहे थे आप। नहीं, मैं यही कहता हूँ, और इंडिया आघाड़ी के भी जो लोग हैं, इनको भी इमोशनल कोड्स देने से पहले 4 बार सोचना पड़ेगा कि भाई
कल आज ये कैसे है, सर्कल है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हो सकता है अगली बार दूसरी सरकार आएगी, तो आप जो बोलते हो इतना संभल के बोलिए कि भाई जो आप बोलते हो, जो आप प्रॉमिस करते हो वो फुलफिल होने वाला है, तो ही बात करें, नहीं तो फिर आपको एक्सप्रेशन देना पड़ता है इट वो चुनावी जुमला। तो यहां पर आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, आई नो दिस इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट, वेरी क्लोज टू यू सर। इन दिस एंटायर इलेक्शन, पूरी जो इलेक्शन कैंपेन रही हर जगह पे, पूरे देश में, देश का कोई भी कोना ले लो, जम्मू एंड कश्मीर ले लो, तमिलनाडु ले लो, केरल ले लो, महाराष्ट्र ले लो, हर जगह ले लो सर, जो सबसे बड़ा मुद्दा आज की तारीख में हमारे सामने है वो है जबरदस्त हीट वेव का। सर दिल्ली में 53 डिग्री 54 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। आज तक कभी दिल्ली में टेम्परेचर इतना नहीं पहुंचा। एवर सिंस टेम्परेचर्स have been started to be recorded since 1832, आज तक कभी इतना टेम्परेचर नहीं पहुंचा है। What are we doing? We are destroying our natural cover, we are destroying our tree cover। मराठवाड़ा में आपके साथ मेरा डिस्कशन हुआ है, यहीं पर बैठ करके प्रदीप जी और मेरा आपके साथ कितनी बार यहाँ पे डिस्कशन हुआ है सर, 300 मीटर, 300 फीट नहीं, 300 मीटर नीचे चला गया वाटर टेबल। विदर्भ में देयर इज नो वाटर। व्हाट आर वी डूइंग? सो व्हाई इज इट दैट पॉलिटिकल पार्टीज डोंट टॉक अबाउट दिस? हेमंत कामरे साहब, just abhi sir, 13 home guards have died, 13 people have died in Mirzapur, Uttar Pradesh because of heat stroke. Heat stroke. With 7 home guards. My God, if you're looking at how our personals are working out there in the field, especially in elections, सबसे बड़ी चीज ये है आज की तारीख में हमारी लेक्स जो हैं मुंबई के आसपास दैट सप्लाई वाटर टू अस, सर 10% पानी बचा है बस। तो हेमंत कामरे साहब इस विषय के बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा? आई नो यू आर इन्वॉल्व विद रिवर मार्च, व्हाट आर वी डूइंग प्लीज? Rajiv ji, I have deep concern for the environment issues, and we have so many times discussed these type of issues in a debate. Yes, we have. See, the problem is when we got the independence, our rural population was 80%, almost 80%. Yes. क्योंकि अर्बनाइजेशन इतना हुआ नहीं था। आज की तारीख में करीबन 65 to 70% जो है 60% तक जो आबादी है हमारी रूरल में है। लेकिन हमारे जो सोचने का तरीका हो जो है वो इतना बदल चुका है कि हम कंक्रीट को प्रोग्रेस समझने लगे। कंक्रीट को हम प्रोग्रेस समझने लगे। इसकी वजह से आप देखिए, मैं कोंकण में अभी एक दिन पहले ही आया हूँ। पूरा कोंकण जो है मुझे कंक्रीट के रोड दिख रहे हैं, और वहां पर भी हीट वेव इतनी है। हमारा कोंकण इतना हरा भरा है, लेकिन वहां पर भी इतनी हीट है। वहां पर भी 40-42। नागपुर में देखिए 10 से 12 लोग अभी मर गए पिछले 2-3 दिन में जी। 50+ अगर वहां पर टेम्परेचर था, आपने दिल्ली में 53 बताया। ये जो है पॉलिटिशियंस, ऑल द पॉलिटिकल पार्टी शुड थिंक अबाउट इट। आपको जो झगड़े करने, मंदिर पे लड़ना है, मस्जिद पे लड़ना है, सब लड़ो, लेकिन ये बुनियादी मुद्दे हैं, इस पर आप काम नहीं करोगे लॉन्ग टर्म पर, तो ना आप मंदिर के लिए लड़ने के लिए रहोगे, ना तो मस्जिद के लिए लड़ने के लिए रहोगे। ये एनवायरमेंट का जो मुद्दा है, ग्लोबल वार्मिंग का, इसके ऊपर हमारे यहाँ पर कोई बात ही नहीं करता है। ये मुझे बहुत दुख देता है, बहुत मुझे पीड़ा देता है कि कोई इस पर बात नहीं करे, कोई कॉन्क्रीट काम नहीं हो रहा। हम यहाँ पर समृद्धि मार्ग जो बनाया हमने, करीबन 750 किलोमीटर का, कोंकण मुंबई गोवा कोंकण हाईवे का कितना है, करीबन 450, 500, 600 किलोमीटर। आप दोनों साइड में पेड़ नहीं लगा सकते, कोई प्लांटेशन का कोई प्रोविजन नहीं है। मैं देख के आया हूं, अभी एक दिन पहले आया हूं मैं। Sir, I'll give you an example, small example. Herbert Baker planned out what is called the Lutyens Bungalow Zone. I am very familiar with it because I was one of the people responsible for marking out the LBZ in Delhi. I was born there, by the way. That's where I grew up. Sir, planning में जो ओरिजिनल पेपर्स हैं हर्बर्ट बेकर और सर एडविन लट्यंस के, उसमें आप देखिए क्लियर कट कहा गया है ये पेवमेंट होगी, उसके साथ में ये वाला फ्लावर बेड होगा, उसमें ये पौधे लगाए जाएंगे, और साथ में जामुन के पेड़ होंगे, नीम के पेड़ होंगे, अशोका ट्रीज होंगे। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द अर्बन प्लानिंग फॉर न्यू दिल्ली। इफ दे कुड डू इट एट दैट टाइम, व्हाई कांट वी डू इट नाउ? इसलिए जब आप सबर्बन दिल्ली से न्यू दिल्ली में आते हैं,
there is an immediate drop in temperature by about 2.5 degrees. 2.5 Exactly, डिग्री का एकदम exactly. ड्रॉप होता है जी। एग्रीड। मुझे लगता है ना कि ये टॉपिक पर हमें ये 4 जून का ये मसला, ये जो रिजल्ट्स है वो होने दीजिए। मैं खुद राज साहब से एक टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। मतलब ये पिछले 15-20 दिनों से जो हीट वेव चल रही है जी, मैं रियली आई एम वेरी मच कंसर्न अबाउट इट। और आपको पता है कि रिवर बाढ़ से मैं ताल्लुक रखता हूँ जी जी या फिर एनवायरमेंट से ताल्लुक रखता हूँ। आज मुंबई में जो एंटी पोल्यूशन कंट्रोल पैनल जो लगे हैं उसकी पूरी जो उसके लिए जो ये की थी, पहल की थी, तो मैंने की थी। आज जी। लगे हैं जहां पर हमें पोल्यूशन पता चलता है। आज क्या हो रहा है, डोंबिवली में आगजनी हो गई, क्या प्लानिंग नहीं, हमारे पास कोई इंडस्ट्रियल प्लानिंग नहीं है, हमारे पास कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं है। महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं मैं। आपको अगर रिहायशी इलाके में आपके एमआईडीसीज है तो एमआईडीसीज के बाजू में रिहायशी एरिया आता कैसे है? सबसे पहली बात। जी अब वहां पर शिंदे जी कहते हैं कि भाई ये जितने भी डेंजरस कारखाने हैं, जो फैक्ट्रीज है, उसको हटाया जाएगा, आगे बदलापुर या उस साइड लेके जाएंगे। तो आपके पास पॉलिसीज नहीं है, आपके पास प्लानिंग नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ के पॉलिटिशियंस का ये है कि दे हैव नो कंसर्न अबाउट द महाराष्ट्र। हेमंत कामले साहब, उन्हें महाराष्ट्र की कुछ पड़ी नहीं है। इनको महाराष्ट्र के ना भूगोल से, ज्योग्राफी से कुछ पढ़ी है, ना एनवायरमेंट से पढ़ी है, किसी से नहीं, ना संस्कृति से पढ़ी, ना अस्मिता से, कुछ नहीं पढ़ा है। हेमंत कामले साहब, मान लीजिए, फर्ज कीजिए, जस्ट इमेजिन अगर मुंबई के जो हमारी 4 नदियां हैं, अगर असल में वो वापस नदी में तब्दील हो जाएं, अगर वास्तविकता में उनके आसपास देयर शुड बी अ लाइन ऑफ ट्रीज ऑल अराउंड देम, कैन यू इमेजिन मुंबई कितना बड़ा स्वर्ग बन जाएगा सर? कैन यू जस्ट इमेजिन दैट? Sir, we presented this to Mr. Ajay Mehta, then Municipal Commissioner. The great Ajay Mehta. हमने पोइसर, yes, ये पोइसर रिवर का हमने कुछ ये किया था, प्लानिंग किया था। जी। वहाँ के हमारे यहाँ के जो असिस्टेंट कमिश्नर थे मिस्टर गायकवाड़, बहुत अच्छा काम किया था हमने। उसकी पूरी हमने वीडियोग्राफी की है, सब कुछ किया है, बहुत अच्छा प्लानिंग था और उस पर काम भी हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम एक ही है कि पॉलिटिकल व्हील जब तक नहीं होती है, जो पॉलिटिकल व्हील हमने नासिक में दिखाई, जो हमने गोदा पार्क बनाया, जो हमने बटरफ्लाई गार्डन बनाया, तो ये सब जो व्हील पावर होती है ना पॉलिटिशियंस की, एक कंस्ट्रक्टिव काम करने की, वो व्हील पावर नहीं है। कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या फिर शिवसेना को हो या फिर एनसीपी के हो, कांग्रेस को, ये सब जिम्मेदार है इसके लिए। क्योंकि ये पिछले 30, 35, 40 सालों से तो यही आ रहे हैं पलट कर सत्ता में। दुरुस्त बात। तो इनको कहीं ना कहीं इस बारे में सोचना पड़ेगा और इनको कहीं ना कहीं इस बारे में प्लानिंग करना पड़ेगा। Thank you so much, sir. Hemant Kamble sir, great pleasure talking to you as always. And I hope to God that this time round in the assembly elections and in the corporation elections, you will make environment a major issue. I hope it happens. Thank you very much. Thank you very much. Jai Hind, Jai Hind, Jai Maharashtra, Jai Bhavani, Jai Shivaji. Vande Mataram. Jai Shivaji. Bye. Thank you. But at least you have one party which is willing to talk about the environment. Sir, Hemant ji वगैरह committed लोग हैं. They have worked on the field, on the ground to save the environment. They have worked for the rivers. They have worked for all these things. If you ask him the cost of roads, he will tell you right from 10 years में क्या हो रहा है. With cost per kilometer cost, ना ऐसे knowledgeable person who's hands-on experience on working for the people. I mean, they need to get an opportunity now. It's high time because it's high time. लोग तो सोचते हैं environment के बारे में सोचते हैं. As I said, we have spent thousands of crores on this sewer gutter which flows right next to us. It's called the Mithi River. It should have been converted and transformed into a river way back. 10 years ago. Until now nothing has happened. And if we continue like this, I can tell you, यहाँ पर आप 10 STP प्लांट लगा दीजिए, sewage treatment प्लांट लगा दीजिए, फिर भी कुछ नहीं होने वाला. I am more concerned when you said that, you know, city having bad rivers or dead rivers. Poisonous rivers will only spread poison. Will only make the city dead. I'm worried for Mumbai. We all worried for Mumbai and hope this rivers are at least cleansed. Sir, हम लोग इतनी गालियां देते हैं आज की तारीख में, एक फैशन सा बन गया है
मुगलों को गालियां देने का। मैं आपको बताऊं, मुगलिया शासन के दौरान एक अकबरी फरमान है कि मैला और अमृत मिक्स नहीं होंगे, यानी स्वेज आपकी कभी भी नदी में नहीं जा सकती, और अगर गलती से चली गई जिसने भी की उसको वहीं फांसी पर लटका दिया जाए। This happened only after the British came, and the first British commissioner of Varanasi in 1936 allowed a huge sewer to drain out its toxic contents into the Ganga. आपको मालूम है बादशाह अकबर का खाना सिर्फ गंगा जल में बनता था, गंगा जल में। Now people won't talk about it. In any event, I don't want to get started off on this. Yes. I will never stop. Right. At the moment with us from the Congress Party, नासिर हुसैन साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। नासिर साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। How are you, sir? How are you? I'm fine, thank you. What about you, sir? Always fine, sir. Always. बैक फ्रॉम Real बिहार, always बिहार से वापस आए कि नहीं आप? नहीं, मैं आ गया। तो सर मोदी साहब तो मेडिटेशन कर रहे हैं, सर ध्यान में बैठे हैं। वो तो मतलब पूरे देश के लिए पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, कहते हैं विकसित भारत बने, अच्छा भारत बने, जबरदस्त बने। क्या सोचते हैं इसके बारे में सर आप? इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, उन्हें करनी चाहिए। और देश के लिए अगर दुआ मांगते हैं इसमें बुराई क्या है? अच्छी बात है, जानी चाहिए। हम इस पे ऐतराज नहीं है, हमें इस पे ऐतराज नहीं है कि वो देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आस्था में है, मंदिर में गए हैं, दर्शन कर, इसके कोई चर्चा का विषय ही नहीं। विषय सिर्फ इतना ही है कि पब्लिसिटी ज्यादा है, कैमरा ज्यादा है। जब इतने सारे कैमरे होंगे तो वो कैसे मेडिटेट कर रहे होंगे, कैसे वो उस प्रार्थना को कर रहे होंगे, कैसे वो प्रेयर कर रहे होंगे, ये तो वो जानते होंगे। बाकी उनके प्रेयर से हमें कोई ऐतराज नहीं है, ना देश को कोई ऐतराज है। तो देश को तो ऐतराज है सिर्फ कि उनके हमारे जो उन्होंने काम किया वो अपने काम को बताए और देश के लिए प्रार्थना करें, तो हम सब उनके साथी हैं जी। तो अब तो 4 तारीख आने वाली है सर, कल लास्ट फेज है इलेक्शन का। बिल्कुल 4 तारीख आएगी, एक नई सूरज उगेगी, इस देश में इंडिया अलायंस की सरकार आएगी, क्योंकि देश ने बहुत कुछ झेल लिया है। देश ने महिलाओं की इज्जत को भी लूटते देख लिया, देश ने महंगाई की बोझ भी झेल ली, नौजवानों की रोजगार भी चली गई, देश के सेनाओं को कॉन्ट्रैक्ट भी, सब कुछ देश ने देखा है। तो अब देश को इस अंधकार से उजाला चाहिए, एक नई सूरज की सबको इंतजार है, जितना हमें इंतजार है उतने देशवासियों को भी इंतजार है। 140 करोड़ की जनता उस दिन की इंतजार कर रही है, कैसे इस सरकार से विदाई मिले और एक नई सूरज उगे, ताकि उनकी जो महिलाओं के लिए हमने वादे किए उस वादों को मुकम्मल करें। कैसे हम उनके अकाउंट में सालाना 1 लाख रुपया भेज सके, कैसे 30 लाख नौजवानों को रोजगार दे सके, कैसे हम 30 लाख पक्की जॉब दे सके, कैसे ग्रेजुएट डिप्लोमा वालों को हम आगे बढ़ा सके, उसके देश सारी इंतजार कर रही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपने ये बात करी है, लेट्स बी वेरी क्लियर, दीज आर द बेसिक इश्यूज। आपका जो मैनिफेस्टो है वो बेसिक इश्यूज को लेकर के है और एवरीबडी इज वेरी इंप्रेस्ड विद इट, उसमें कोई दो राय नहीं है। और इंप्रेस्ड क्यों है? क्योंकि भाई सच्चाई की बात हो रही है ना। सर इलेक्शन कमीशन ने ये नोटिस कैसे भेज दिया कि भाई अग्निपथ स्कीम जो है उसके ऊपर आप बात ना करें? मुझे जरा अजीब लग रहा है। अभी अभी भेजा है, ये क्या मतलब हुआ? सर बताएं जरा प्लीज। सर इलेक्शन कमीशन को 117 हम लोगों ने कंप्लेन किया, 117, जिसमें 10 से 14 या 15 हमने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ है, होम मिनिस्टर के खिलाफ, पर एक भी कंप्लेन पे एक्शन नहीं होता है। जितनी धर्म जातियों के नाम इस देश के प्रधानमंत्री ने लिया, इवन विपक्ष को मुजरा तक कह दिया कि मुजरा देख लो, उन्होंने विपक्ष को मटन मछली पता नहीं किससे जोड़ दिया। तो आज मैं पूछता हूँ, जब विपक्ष की किसी भी सवालों का वो इलेक्शन कमीशन ने हमारे जवाब नहीं दिया, तो हम उनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं? वो हमें इसी तरह की नोटिस देंगे। अग्निवीर जैसी योजना अगर हम कैंसिल करने की बात करते हैं, हमारे मैनिफेस्टो में तो इलेक्शन कमीशन को ऐतराज किया, क्यों हमारे देश के भविष्य के साथ वो खेलना चाहते, किस बात पे वो देना चाहते? अगर हमारे 117 कंप्लेंट पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक्शन लिया होता जो धर्म और जात के लाभ, जबकि इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन ही है कि धर्म और जात के नाम पे वोट नहीं मांग सकते, आस्था के विषय पे वोट नहीं मांग सकते, पर ये पूरी चुनाव आप देखिए मोदी जी ने सिर्फ राम मंदिर के वोटों पे, हिंदू धर्म के नाम पे, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल के इस तरह से वोट मांगा है। उन्होंने मुजरात तक जैसे अल्फाजों का यूज किया है, फिर भी इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब नहीं दिया। इलेक्शन कानून उसने खामोशी अख्तियार कर ली।
तो आज वो इस तरह की जवाब देके वो अपने आप को शुरू बनने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन भी अब मुझे लगता है उस लाइन में खड़ी हो गई जहां ईडी, सीबीआई और दूसरी एजेंसियां खड़ी थी, आज उसी अपने रॉ में खड़ी, जिसकी पूरी देश की आस्था इलेक्शन कमीशन में कि वो एक न्यूट्रल रहेगी, वो न्यूट्रल बन के काम करेगी, मगर वैसा दिख नहीं रहा है क्योंकि हमारे 117 कंप्लेनों में से किसी पे एक्शन नहीं लिया गया, जबकि होम मिनिस्टर पे या चीफ मिनिस्टर यूपी पे है, हेमंत बिश्व शर्मा पे किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जहां खुलेआम धर्म की बात हुई, खुलेआम मुसलमान धर्मों को गाली दिया गया, खुलेआम उनको इस देश के नागरिक ना होने का ऐसा सबक दिया गया कि देश के वो नागरिक ना, फिर भी कोई इलेक्शन कमीशन ने कोई उस पर एक्शन नहीं लिया है, तो हम उससे उम्मीद भी नहीं कर सकते। नासिर हुसैन साहब, आप बिहार में थे, आप बिहार में ग्राउंड लेवल पे हर चीज देख लिए। लास्ट टाइम बीजेपी ने 39 आउट ऑफ 40 बीजेपी और अलाइज, मगर आज राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव और पूरे फैमिली एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट है कि ये पूरा काया पलट होने वाला है, कांग्रेस इज गोइंग टू स्कोर, इंडिया अलायंस इज गोइंग टू स्कोर। बट बीजेपी का कहना जमीनी हकीकत कुछ और है। उनका कहना है कि कास्ट इक्वेशंस बीजेपी के फेवर में। उनका कहना है कि गए बार भी जिस प्रकार से बीजेपी के 17, जनता दल यूनाइटेड के 16 और एलजीपी के 6, फिर मांझी साहब जो सीएम पूर्व, ये सब जोड़ के उनके समीकरण ज्यादा है। आप नासिर हुसैन साहब ग्राउंड से पूरे स्टडी किए हैं, क्या है वातावरण बिहार में? किताबों में आंकड़े दिखाने बड़े आसान है, जमीन पे उस आंकड़ों को पेश करना बड़ा मुश्किल है। तो जमीन पे आप देख लीजिए तो उनके रैलियों की भीड़ का अंदाजा देख लीजिए, पैसों के बदौलत भीड़ भी लाई जा रही है तो भी भीड़ इकट्ठा नहीं हो रही। आपने तेजस्वी जी के भीड़ देखा होगा, राहुल जी की भीड़ देखा हो, तो जमीन की आवाम बता रही कि हवा का रुख किधर है। हवा का रुख इनके खिलाफ जा चुका है, क्योंकि मैं पलटू राम तो नहीं बोलता हूँ, क्योंकि आप पूछ के आइए नीतीश कुमार पे, आज बिहार की किसी भी आवाम को आज उन पे यकीन है क्या? आज वहां के लोग उन पे भरोसा करने को तैयार नहीं है। क्या मालूम वो कल किधर पलट के चले जाएंगे, कब किधर पलट। और मांझी जी की बात तो आप जानते हैं, वो 16-15 सीट पे जो लड़ रहे हैं, शायद उसमें से एक आध जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो वो तो गिनती में, हाँ, हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ फाइट है। हम भारतीय जनता पार्टी को सिंगल डिजिट में वहां रोक देंगे, ये आप यकीन मानिए। लेकिन ये बताएं नासिर साहब, क्योंकि अभी हम फुटेज देख रहे थे, कैन वी हैव दैट तेजस्वी यादव फुटेज ऑन प्लीज अलॉन्ग विद राहुल गांधी जी? वो मतलब इतना जबरदस्त जो क्राउड का रिएक्शन है, मतलब आई हैवंट सीन समथिंग लाइक दिस इन अ लॉन्ग टाइम। लेकिन क्या ये असल में वोट में तब्दील होगा नासिर साहब, प्लीज? देखिए सर, वोट में तब्दील होगा, क्यों नहीं होगा तब्दील? क्या आज बेरोजगारी चरम पे है या नहीं है, महंगाई चरम पे है या नहीं है, लोगों की हालात बद से बदतर है या नहीं है, किसानों की हालत बद से बदतर है या नहीं है, तो क्यों नहीं ये वोट में तब्दील होगा? जब किसानों के जो बच्चे हैं जब फौज में जा रहे हैं, कोई अमीरों के बच्चे फौज में काम नहीं करते, इसी किसान के बच्चे जाते हैं सरहद के, इस देश के लिए लड़ते हैं और देश के लिए शहीद होते हैं। जब उसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए भेज दिया जाए, अग्निवीर जैसे सेवाओं के लिए उन्हें भेज दिया जाए, तो क्या वो किसान इन्हें वोट देगा? जब हमारे नौजवान बेरोजगार हो, क्या इन्हें वोट देंगे? क्या महिलाओं की अस्मिताओं को लुटा जाए, चाहे वो हाथरस हो, उन्नाव हो, क्या ये इन्हें वोट देंगे? मणिपुर हो, इन्हें वोट देंगे? किस बदौलत इन्हें वोट देंगे? हम बार बार कहते हैं कि इस बार हमने जो चुनाव लड़ा है, मुद्दों पे लड़ा है, हमने इन्हें मुद्दों पे लाने की कोशिश की है। तो आप देखें तो ये भटक गए, तो ये म से मंगलसूत्र पे आ गए, म से मच्छी पे आ गए, म से मुजरा पे आ गए, म से पता नहीं किन किन चीजों पे चले गए। तो ये म में भटकते चले गए, हम मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं। तो आप बताइए, यूट्यूब पे आप देखा होगा हमें 600 मिलियन व्यू मिलता है, इन्हें 150 मिलियन व्यू मिलता है, यानी 150 मिलियन व्यू इनके पास है। तो जनता हमें देख रही, इनके बातों पे यकीन नहीं कर रही। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उठा के देख लीजिए तो व्यूअर हमारा इनसे 4 गुना 6 गुना ज्यादा है। ये हमारे टक्कर में नहीं दिख रहे, ना तो ये जमीन पे टक्कर में आ रहे हैं, ना सोशल मीडिया। तो इनकी बौखलाहट है, तो मंगलसूत्र पे चले आते हैं, धर्म के ऊपर चले आते हैं, मुजरा दिखाने लगते हैं। क्या एक प्रधानमंत्री जैसे कद के लोगों पे इस तरह की अल्फाज या तलफ्फुज अच्छी लगती है? मुझे तो नहीं लगता। दूसरी चीज एक और नासिर साहब, एक और बड़ी डिस्टर्बिंग चीज है, कल जो हुई है, परसों हुई, व्हेन वाज द लास्ट रैली ऑफ द प्राइम मिनिस्टर? इट वाज डे बिफोर, राइट? सर, उन्होंने
उन्होंने तो मुंह से धमकी दे दी, मतलब मोदी जी ने तो धमकी दे दी, मेरा मुंह मत खुलवाओ, ये इंडिया अलायंस के जो लोग हैं, ये सर ये क्या है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, व्हाट इज द मैटर? तो मैं कह रहा हूं ना, ये हार जब घबराहट में आते हैं लोग, जब डर जाते हैं क्योंकि ये लड़ाई जनता की लड़ाई है, गरीबों की लड़ाई है, मफलूसों की लड़ाई है, तो उनकी एक बौखलाहट है कि वो कहते हैं हम आपको जेल में भेज देंगे, हम उनको जेल में भेज देंगे, एजेंसियों का खौफ दिखाने लगते हैं। पर जनता ने जब फैसला कर लिया है, जेपी आंदोलन जब मूवमेंट हुआ था तो आपको भी याद होगा, वैसे ही जनता आज सड़कों पे है। जब संसद आवारा, जेपी ने ही कहा था ना, जब संसद आवारा हो जाए तो सड़कें तुम, पर आज मोदी जी को सोचना पड़ेगा क्यों ये आवाम उनसे पिछड़ती चली जा रही है। मुझे नहीं मालूम कि मुझे कितना आंकड़ा आता है, मगर 272 सरकार बनाने के लिए आंकड़ा चाहिए, तो मुझे यकीन है कि 272 से ज्यादा मुझे आएंगे। मगर ये 400 पार का नारा देने वाले आज इनकी हालत क्या हो गई है? क्योंकि कोई नेता जमीन पे टिकने को तैयार नहीं है, जमीन पे बात कर, क्योंकि जनता इन्हें हर जगह से भगा कर रही है, उनके संसद से बात करती है, कहाँ है मेरा रोजगार, कहाँ है हमारी महफूजियत, कहाँ है हमारी हिफाजत, बताओ क्यों तुमने हमें रोजगार नहीं दिया, क्यों हमें बेरोजगार छोड़ दिया, क्यों अग्निवीर पे लाके छोड़ दिया, क्यों महिलाओं की हालात नहीं बदली, क्यों गरीबों की हालात नहीं बदली, क्यों किसानों की हालात नहीं बदली, क्यों नहीं मंडी में सही रेट मिली, क्यों नहीं किसानों को सही दाम मिली? तो जनता पूछ रही है ना। जनता जब पूछेगी, और जनता क्यों ना हमारे भरोसों पे यकीन करे, क्योंकि हमने जो वादा किया है हम उस वादों को मुकम्मल करेंगे, तो जनता हमारे बातों पे यकीन करेगी। तो मैंने अभी आपको कहा, सोशल मीडिया आज की तारीख में यूट्यूब पर मुझे लगता है आवाम सबसे ज्यादा देख रही है, तभी तो 600 मिलियन व्यू हमें आता है और 150 मिलियन व्यू उनको आता है। तो आप फर्क देखिए, तो जनता ने फैसला कर लिया है, इनको भेज देना। अब इनके धमकी से ना हम डरते हैं, क्योंकि जब गोरे अंग्रेज हमें ना डरा पाए, तो ये काले अंग्रेज मुझे कैसे डरा? नासिर साहब उत्तर प्रदेश, बिहार तो आपने समझा दिया पोजीशन क्या है। उत्तर प्रदेश में भले हम लोग जन सैलाब देख रहे हैं, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव के जो रैलीज है, पूरे जिस प्रकार से एंथुसियास्टिक क्राउड वहां पर आ रहे, लग रहा है कि बिके क्राउड नहीं है, पैसे लेके नहीं आए, ये दिल से सपोर्ट करने के लिए आए, वो दिख रहा है, फोटोग्राफ में दिख रहा है, वीडियो में दिख रहा है, हर फुटेज में दिख रहा है। पर बीजेपी का कहना है क्या आज के तारीख में मायावती इनके साथ नहीं है, तो जटा वोट अलग हो गए, तो क्या यादव वोट और सिर्फ राहुल गांधी जी के कांग्रेस वोट से मोदी जी के रथ को यहां पर रोक देगा? यूपी में मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि 80 सीट, और दूसरा जो जातीय समीकरण है उनको कहना कुर्मी, राजभर, लोध, निषाद, मौर्य, जाट, ये सब बीजेपी के साथ है। तो क्या सिर्फ यादव और इंडिया अलायंस कांग्रेस के वोट जीता पाएंगे? नासिर हुसैन साहब, मैं यहाँ पे न्यूट्रल होकर एनालिसिस करता हूं, मैं एक प्रवक्ता की तरह जवाब दूं तो बेहतर नहीं है। अगर आप बहुत अच्छे पत्रकार भी हैं और आप समझते होंगे, तो राहुल गांधी अमेठी में 2019 में चुनाव हार जाते हैं, लगभग 50 से 56 हजार वोट के दरमियान। 55,000 वोट, मैं वही 50,000 से 55,000 के बीच में वो चुनाव हार जाते हैं। और वहां पे मायावती के से 2014 में, पता नहीं समझ रहे या नहीं समझ रहे, समझने की कोशिश करिए। जब दलित वोट मायावती के साथ इंटैक्ट है, उसकी वोट हमें ट्रांसफर नहीं हो रहा है। आप 2019 का चुनाव देखें तो राहुल गांधी चुनाव सिर्फ इसलिए हार गए कि मायावती जी के साथ मेरा अलायंस था वहां पे। अगर मायावती का कैंडिडेट वहां अलग लड़ता तो स्मृति ईरानी नहीं जीत पाती। आप देख लीजिए, क्योंकि ये मैं नहीं कहता हूं, आप कहीं भी आप डाटा एनालिसिस करें तो दलित वोट ऑटोमेटिकली ही बीजेपी को ट्रांसफर हो जाएगा जहां पे मायावती का कैंडिडेट नहीं हो। तो आप यकीन मानिए कि इस बार उनकी हार इसलिए तय है कि मायावती अकेले लड़ रही है, पूरी दलित वोट मायावती की तरफ जाएगा। और एमआई समीकरण है, ओबीसी समीकरण है, चाहे कोई कि ये समीकरण जो है कांग्रेस के साथ और उनके साथ ही आएगा और बीजेपी की जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप यकीन मानिए, चुनाव को अगर आप समझते हैं, आप यहाँ यूपी की चुनाव को अगर आपने करीब से देखा होगा, तो मेरा अपना एनालिसिस है इस बार उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि 30 सीट मिलेगा कि 25 सीट मिलेगा, इससे ऊपर वो बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, ये बीजेपी को खुद से एनालिसिस करना चाहिए।
क्या मायावती को अलग लड़ने से फायदा था, क्या कांग्रेस के साथ आने से फायदा था? ये आज बीजेपी से ऑफ कैमरा रिकॉर्ड आप बात करेंगे तो इसका जवाब वो बेहतर तरीके से आपको देंगे। और दूसरी चीज एक और सामने आई है नाज़र साहब, मैंने पहली बार किसी भारतीय जनता पार्टी और उसके पहले भारतीय जनसंघ, भाई हम तो जर्नलिस्ट हैं 1982 से लेकिन उसके पहले भी, क्योंकि पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं, घर में तो पॉलिटिक्स चलता ही था हमेशा, सब नेता वेता सब लोग आया करते थे। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, पहली बार मैंने किसी भारतीय जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को ये बोलते हुए सुना है, वी डोंट नीड द आरएसएस, हमें आरएसएस की आवश्यकता नहीं है। नड्डा साहब ने ये बोल दिया। सर ये क्या है, ये क्या हो रहा है सर? जब इंसान की घमंड बहुत होती है तो वो घमंड पे चूर हो जाता है। उन्हें लगता है कि मोदी जी से बड़ा कोई संगठन नहीं है, बीजेपी भी कम है, मोदी जी बहुत ऊपर है। खैर आरएसएस की बात ही क्या करे, वो आरएसएस है जो अलग ही दुनिया रही, ना आज़ादी की लड़ाई लड़ी, ना किसी गरीबों के लिए आंदोलन की, तो उनकी दुनिया ही अलग है। तो आज वो जो संगठन उन्हें बच्चे की तरफ पाल के इनको बड़ा करता है बीजेपी को, जब बीजेपी के नामो निशान नहीं थी, जनसंघ थी, और वो तो उस समय भी आरएसएस ने इनको सपोर्ट करके एक अन्ना आंदोलन जैसा खड़ा किया। उस आरएसएस ने अन्ना आंदोलन को इतना बड़ा बना दिया कि आपको मालूम है जिससे बीजेपी सत्ता में आ गई। तो आज बोलते आरएसएस की जरूरत नहीं है, तो इस चुनाव में पता चल जाएगा कि आरएसएस इनके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। अब मुझे नहीं मालूम इन्होंने क्यों बोला है कि आरएसएस ने ऐसा क्या, तो आरएसएस भी नहीं चाहती होगी, शायद इनकी घमंडे की आरएसएस को पसंद नहीं आएगी। हम तो आरएसएस की बात करते नहीं ना, हम आरएसएस के बात को समझते हैं, क्योंकि हम आरएसएस को जब से देख रहे हैं, जनसंघ के दौर से, आजादी के दौर से और अब तक दौर से, ये नफरती लोग हैं, नफरती फैलाते हैं। क्योंकि आज देख ही रहे आप रिजर्वेशन के नाम पे किस तरह की आग उगली जा रही है। यही आरएसएस की जो कहती थी रिजर्वेशन का ये विश्लेषण होना चाहिए, आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए, आरक्षण की जरूरत नहीं है, आरक्षण की ये करिए वो करिए, तरह तरह की बातें करते थे, जो आरक्षण के खिलाफ बात करते थे, रिजर्वेशन की। आज वो आरएसएस इनके लिए जरूरत है या नहीं है, यानी कि रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं या आरएसएस से अलग होना चाहते हैं या क्या है, ये तो इनको जवाब देना चाहिए। क्यों नहीं आज आरएसएस से, किस बात से इनको आरएसएस के खिलाफ है, क्यों आरएसएस से ये नफरत करते हैं, अब तो इन्हें जवाब देना चाहिए। लेकिन सर एक वन स्मॉल थिंग, एक बहुत बड़ी चीज हुई है जब से मोदी जी सत्ता में आए, बहुत बड़ी चीज हुई है सर। ये क्या है कि आई होप इट गेट्स करेक्टेड, whoever comes to power, even if Mr. Modi comes back to power or you come to power, I hope it gets corrected। सर वो हमारी जो लेबर मिनिस्ट्री है ना, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, वो क्वार्टरली फिगर्स पब्लिश किया करते थे एम्प्लॉयमेंट के। सर वो 8 साल से फिगर पब्लिश नहीं कर रहे, वो डेटा आया ही नहीं सर, नहीं 8 साल से नहीं आ रहा सर, क्या है ये? वो बेरोजगारी की आलम इतनी है, 47 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अभी, तो वो डेटा कैसे दिखाएंगे, जनता को क्या जवाब देंगे कि हमने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, आज क्यों है? अब मैं हैरान तो ये हूं कि बोलते हैं कि 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया। वो कौन सा डेटा है, मैं वो जानना चाहता हूँ, वो डेटा कौन सा है बताओ। मैंने संसद के अंदर मनीष तिवारी ने सवाल किया था कि कौन सा डेटा, पर उसका जवाब संसद के अंदर नहीं दे सके। नहीं, अभी नहीं उसका रिपोर्ट, उन्होंने वो रिपोर्ट के हिसाब से आया था कि मनमोहन सिंह ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया, उसका डेटा है हमारे पास। ये डेटा नहीं सा दे सके, मनरेगा में पैसा नहीं दे सके, लोगों को बेरोजगारी पे छोड़ दिया, लोगों के पास काम नहीं है। आप बिहार यूपी के ट्रेनों में देखिए तो दर दर घर के गरीब के बच्चे पलायन कर रहे हैं, अपने घर रुकने को तैयार नहीं है। क्या वो माँ बहनें इन्हें पैसे देंगे? जो बच्चे कम उम्र में काम करने के लिए दिल्ली मुंबई शहरों की तरफ रुक कर रहे हैं, वो घर वीरान है, घर पे कोई चिराग जलाने वाला नहीं, क्या वहां की माँ बहनें इन्हें वोट देंगे? तो लोग पूछ रहे हैं ना बेरोजगारी क्यों है। अगर रोजगार होता तो यूपी बिहार में लोग काम करने जाते, क्यों यूपी बिहार के लोग दूसरे शहरों में आज दर दर धोखा खा रहे हैं? क्यों ये राज ठाकरे जैसे लोग उनको ठोकरे मारते हैं? क्यों ऐसे राज ठाकरे लोगों की वजह से उन्हें यहाँ दर दर की गालियां सुनने पड़ती है? उस राज ठाकरे के साथ अलायंस करने वाले पार्टी को कोई वोट देगा? तो नॉर्थ इंडिया के लोग पूछ रहे हैं कौन से राज ठाकरे से तुमने अलायंस किया है? वो जो बिहार यूपी के बच्चों को मारता था, वो जो बिहार के रेलवे में एग्जाम देने गया उसे कत्ल कर दिया गया, उस राज ठाकरे के साथ अलायंस करने वालों को तुम वोट दोगे? तो वहां के लोग पूछ रहे हैं, जो नफरती लोग हैं, जो स्टेट के वर्जन से बांट देते हैं, क्या ऐसे लोगों को वोट देंगे? तो वहां की आवाम पूछ रही है नॉर्थ इंडिया की, क्या राज ठाकरे से अलायंस करने वालों को वोट मिलना चाहिए या जमानत जब्त होना चाहिए? ये वहां की आवाम फैसला करेगी। नाज़िम साहब, हाल ही में मोदी जी ने कहा कि आर्टिकल 370
ये जानबूझकर परिवारवाद फैमिलीज ने इसको इनकॉर्पोरेट किया, एक भय का वातावरण बना के उस भय के माध्यम से वॉल ऑफ बेनिफिट, परिवारवाद वाले फैमिलीज को पैसे इसमें कमाने मिला, बेनिफिट्स कमाने को मिला, बहुत सारे लाभ इस आर्टिकल 370 से हुआ। और वो मोदी जी है कि इस चीज को खत्म किया। 70 इयर्स के आसपास कंटिन्यूस चला, खत्म हो गए। तो इसमें कितने सच्चाई है? क्या फारूक अब्दुल्ला फैमिली, गांधी फैमिली, अब बाकी जितने फैमिली है इसको गेन कर रहे थे? महबूबा मुफ्ती सईद फैमिली, यस मैं बोलता हूँ, अच्छा आपने नाम, अच्छा मेरा करेक्ट भी कर दिया। 370 से इन तीन परिवार को बहुत फायदा हुआ, महबूबा मुफ्ती सईद को, उमर अब्दुल्ला फैमिली को, और हो सकता है वो कांग्रेस परिवार को भी उसमें काउंट करते हैं। आप मुफ्ती मोहम्मद सईद होम मिनिस्टर किसके सरकार में थे? पीडीपी के साथ अलायंस करके मुख्यमंत्री बनाने वाले कौन सी सरकार थे सर? उमर अब्दुल्ला को विदेश मंत्री बनाने वाले कौन थे सर? इनसे जवाब, इन्हीं परिवार के कंधों पे आप कश्मीर में जाते हो, इन्हीं परिवार, यानी उस मलाई का हिस्सा आपके पास भी था, तभी तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस परिवार ने उसको लूटा होगा 370 से, तभी तो उन्हें मालूम है कि 370 से पैसा आता था। इन्हीं परिवारवादियों के साथ उनका अलायंस था, महबूबा मुफ्ती सईद के साथ, सईद के साथ, आपके उमर अब्दुल्ला के साथ, फारूक अब्दुल्ला के साथ, उनके साथ इनका था। इसलिए इनको मालूम है कि मलाई आता होगा। हमें तो नहीं मालूम है कि आ रहा है, पर बीजेपी को अब इस पे भी हम लोग अगर सत्ता में आए तो जांच कराएंगे कि इन परिवार वालों के साथ रह के कितना पैसा इनके पास आया है। तो अच्छा आपने एक मुद्दा दे दिया, ये भी मैं नोट करता हूं कि इस पैसे कैसे ट्रांसफर हुआ, ये इसका जवाब मोदी जी को देना पड़ेगा। मोदी जी को कितना पैसा इस परिवार वालों ने दिया उमर अब्दुल्ला साहब को विदेश मंत्री बनाने के लिए, महबूबा मुफ्ती सईद को मुख्यमंत्री बनाने के लिए 370 से कितना पैसा ट्रांसफर हुआ, उसका जवाब मोदी जी को देना पड़ेगा, क्योंकि इस 370 से पैसा बहुत जनरेट हुआ है। ये खुद देश के प्रधानमंत्री ने बोला है। जिस तरह से अडानी अंबानी के बोला था कि टेम्पू भर भर के पैसा कांग्रेस के पास आ, हमारे एआईसीसी के लोग खड़े हो गए कि वो कौन सी टेम्पू आ रही है, ताकि हमें नेशन नाउ जैसे या दूसरे चैनलों को हम लोग ऐड दे सके। अगर वो टेम्पू आ जाता तो हम पक्का आपको ऐड देते, पर हमारे पास वो टेम्पू आया नहीं। वो सर बीच में डाइवर्ट हो गया होगा, हमने पता का एड्रेस भूल के वो पंडित दीनदयाल के तरफ चला गया, पर उसकी भी जांच होगी, क्योंकि इसकी सबूत, जिंदा सबूत किसी ने दिया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दिया है, उसके आई विटनेस है, तो ये भी जांच होगी। इस तरह 370 से पैसा आया, वो किधर गया, और अडानी अंबानी के घर से जो टेम्पू निकला वो पैसा कहाँ आया, उसकी भी नहीं। तो ये देश के प्रधानमंत्री जब बोल चुके हैं तो हमें पक्का यकीन है इस 370 से पैसा आ रहा था, और ये दो परिवार वालों ने इनको दिया, इस पे भी जांच होगी। क्या बात है साहब, क्या बात है। तो सर चलते चलते अभी ये भी बता दें, एक बार कहते हैं ये माइनॉरिटी, अरे तो ये सोचना चाहिए कि रिजर्वेशन पे पूरी चुनाव इन्होंने इसी पे लड़ा कि मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए। अरे तो हमने एक मंडल कमीशन से एक जरूर गलती हुआ, मेरा जहां तक सोचना है कि मंडल कमीशन ने ओबीसी को तकरीबन 52% बोला, पर आपको पता है हजारों 8 साल 7 साल 9 साल पहले वो जितने ज्यादातर मुसलमान जो है वो दलित ओबीसी थे, वही लोग कन्वर्ट हो गए। तो अगर मुसलमानों में जो कन्वर्ट हुए हैं उस वक्त, जो दलित थे ओबीसी थे, वो लोग, ये मैं हकीकत है, ये जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ, जो कन्वर्ट होकर मुस्लिम बने, वो समाज पिछड़ा रहे, तो वो क्या उस समाज को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए? पूरे मुसलमान कौम को तो नहीं बात कर रहे थे हम रिजर्वेशन की, हम बात करें जो पिछड़ापन हो, जिस समाज, अगर हिंदू में कोई यानी दलित कोई हिंदू नहीं मानते हैं, ओबीसी को ये हिंदू नहीं मानते हैं, तभी तो हम उनको रिजर्वेशन देते थे कि हिंदू में ये पिछड़ापन है। अगर इसी तरह मुसलमान में कोई जाति जो कन्वर्ट हुआ, लगभग 80 से 90% है, मेरा जहां तक कहना है, जो कन्वर्टेड है, जो उस वक्त दलित और ओबीसी कन्वर्ट होकर इंडिया में बने, उसमें भी समाज में दलित से भी बदतर जिंदगी है, जो आपने भी सच्चर कमेटी का रिपोर्ट पढ़ा होगा, दलितों से भी बदतर मिलता है। तो आपको तकलीफ क्या है? लेकिन गुजरात में तो दे रहे हैं ना सर। मैं कह रहा गुजरात का मैंने खुद न्यूज डाला है, मैंने खुद न्यूज दिया है, उनका शेड्यूल 2 में देखिए तो खुद वो अरबी, सकरी, जुलाहा, दुनिया, खुद गुजरात में जहां के 15 साल से वो मुख्यमंत्री थे, वहां रिजर्वेशन दे रहे हैं। यहाँ आके प्रधानमंत्री मंचों से झूठ बोलते हैं। अरे कितना झूठ बोलोगे बाबा, कितना कोई झूठ बोलता है? देश का प्रधानमंत्री होके आप मुसलमानों के खिलाफ बात करते हो, कभी आपने इनसे ये नहीं पूछा कि रोजगार हम देंगे,
दलितों के उद्धार करेंगे, गरीबों के लिए ये काम करेंगे, इतना घर बनाएंगे, इतना हमने टॉयलेट दिया तो कहां दिया, तो इन पे बात नहीं करके सिर्फ नफरत। तो आज ये देखिए ना, मंगलसूत्र है, भैंस खोल लेंगे, ऐसे कहीं चुनाव लड़ा जाता है? हमने अपने बेस पे डाला, हमने इतने साल में ये काम किया है, हमारा विजन ये है, हम 1 लाख महिलाओं को सालाना पैसा देंगे, हम 30 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, अग्निवीर कैंसिल करेंगे, हमने इस पे चुनाव लड़ा है। आप क्या कर रहे हो? हिंदू पे ला रहे हो, मुस्लिम पे ला रहे हो, भैंस पे ला रहे हो, मंगलसूत्र पे ला रहे हो, मुजरा पे ला रहे हो, इन्हीं सब मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हो। मुजरा कहां से आ गया सर? ये मुजरा कहां से आ गया, मुझे समझ में नहीं आया। विपक्ष को मंत्री कभी नहीं देखा हमने जो अपने अल्फाजों को कंट्रोल नहीं कर पाया। आप हजारों इंटरव्यू दीजिए, हजारों आप मीटिंग करिए, मगर तलफ्फुज पे पकड़ होनी चाहिए, अल्फाज पे पकड़ होनी चाहिए। शुड बी यू स्पीक इन द मैनर। आप अपनी जब भी बात करें आप मैनर में बात करें, पर नहीं, विपक्ष को आप तो दुश्मन की बना दिया। अरे हमने भी लड़ाई अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ लड़ाई, तलखी बहुत रही होगी, हमने इतनी चुनाव लड़ी, मगर ऐसी नफरती हमने नहीं, तल्ख जरूर रहे, नफरती चुनाव नहीं लड़ी है। ये तो नफरतों से चुनाव लड़ते हैं, तो ऐसी नफरतों को जनता कभी बर्दाश्त नहीं करती है, हर जनता इन्हें उखाड़ फेंकती है। तो इससे कभी इमरजेंसी का मुद्दा, जो इमरजेंसी का अभी कोई मतलब नहीं, जो नेता आज मौजूद नहीं है, तो ये आप देखेंगे ये चुनाव में कभी पटेल जी को नेहरू जी से लड़ा देंगे। जिनको ध्यान नहीं है गांधी के बारे में, वो भी गांधी के बारे में बात करने आते हैं, क्योंकि गांधी को ये जानते नहीं है ना, ये सावरकर को जानने वाले लोग तो गांधी को पढ़े नहीं होंगे। इनको मालूम 82 में पड़ता है कि कोई गांधी थे, ऐसा प्रधानमंत्री आपने देखा है कभी? कि जो 82 की गांधी मूवी देख के मालूम पड़ता है कि कोई गांधी था? अरे इससे पहले कोई गांधी नहीं थे। कमाल के लोग हैं। दुनिया के किसी मुल्क में चले जाए, मैं लगभग 40-50 कंट्रियों में गया होगा, मैंने जहां भी गया तो गांधी जी के स्टैचू देखी। पता नहीं ये कौन से कंट्री में बोलते हैं दुनिया में विश्व डंका हमारा बज रहा, पर गांधी जी की मूर्ति नहीं देख पाते, गांधी जी के स्टैचू नहीं देख पाते, तो इनसे क्या सीख मिलेगा देश को? There is, by the way, just one small thing for our viewers, जो अभी नासिर साहब ने बात करी, 1980 तक there were 95 universities all over the world, 95 यूनिवर्सिटीज पूरी दुनिया में, 1981 की बात कर रहा हूं, who had full-fledged courses on Gandhi. This is just for the information of our viewers. जी अब आप बोलिए। आपने एक और अल्फाज में चलते चलते मैं ही बोलता हूँ, आप हमेशा मुझे बोलते हैं चलते चलते क्वेश्चन करता है। अभी इन्होंने एक मुद्दा, मैं जब से महाराष्ट्र में आया हूँ तो जितेंद्र अवार्ड के खिलाफ इन्होंने खोला है कि उन्होंने एक फोटो गलती से फाड़ दी। अरे तुम्हारी शर्म तब कहां मर गई जब सावित्री बाई फुले के खिलाफ तुम्हारे गवर्नर ने आके यहाँ पे बोला, गंदी अल्फाज से बोला, छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ बोला, तुम्हारे प्रवक्ता ने बोला, तब तुम्हारी शर्म कहां मर गई थी? तब अपमान तुम्हारे तुरुप को आ गया हो भी महाराष्ट्र के धरती पे। तो मैं बार बार बोलता हूं, गजब तमाशा हुआ हिंदुस्तान के तकदीर के साथ, गजब तमाशा हुआ हिंदुस्तान के तकदीर के साथ, महापुरुषों का अपमान हुआ महाराष्ट्र के जमीन के साथ। तो इन्होंने महाराष्ट्र के जमीन को बदनाम किया, तो छत्रपति शिवाजी महाराज को किसने गालियां दिलवाई? सावित्रीबाई फुले को किसने गालियां दिलवाई? महात्मा फुले को गालियां किसने दिलाई? तो यही भारतीय जनता पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है, तो हिंदुस्तान की जनता ने भी रिजेक्ट करने का काम कर रही है। तो नासिर साहब, लेकिन संबित पात्रा साहब तो बोलते हैं कि भगवान जगन्नाथ जो हैं वो मोदी जी के भक्त हैं। अब इससे बड़ी बात क्या होगी? अब चलिए मैं क्या बोलूं, अब भगवान ही इनके भक्त हो गए हैं। जी बोला। तो चलिए मैं मान लेता हूं उनसे गलती हुई, उन्होंने माफी मांगी, मैं 2 मिनट के मान भी लूं, मगर सावित्री बाई फुले और महात्मा फुले और इनके खिलाफ अगर बोले छत्रपति शिवाजी उसके लिए कब भारतीय जनता पार्टी ने माफी मांगी? मैं कहता हूं संबित पात्रा ने गलती की या स्लिप ऑफ टून है, जो भी है, उसने माफी मांगी, मैं उस पर मुझे कोई ऐतराज नहीं, गलतियां हो जाती है, मगर ये जिद पे अड़ जाना, उसके लिए कोई माफीनामा आज तक नहीं किसी ने मांगा, उस पर मेरा ऐतराज। क्यों छत्रपति शिवाजी महाराज का बदनाम किया गया? क्यों सावित्रीबाई फुले को जो वो सावित्रीबाई फुले जिन पे लोग पत्थर चलाते थे, जो महिला एक साड़ी लेके अपने बच्चों को एजुकेशन देती थी, जिसको घर पे आसरा नहीं दिया था, उसको आसरा देने वाला कोई था बजाज भाई, तो शेख फातिमा थी। वो मुसलमान शेख फातिमा थी जो अपने घर में उन्हें रखती है, उन्हें धन दौलत देती है, उन्हें यूनिवर्सिटी कॉलेज बनाने में उनकी योगदान देती है, और देश की पहली माइनॉरिटी टीचर शेख फातिमा। तो हिंदुस्तान ने सबको भुला दिया है ना। हजरत बेगम को किसी ने याद रखा, जो जिस तरह रानी की झांसी को याद रखा गया, उसी तरह हजरत बेगम को याद रख, जो अंग्रेजों के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ती रही, उन्होंने घुटना नहीं टेका। उनकी क्या लड़ाई थी? क्या हजरत बेगम को वो रुतबा मिला? हमने तो नहीं बोला कि वो मुसलमान थे, उन्हें वो रुतबा नहीं मिला।
शेख फातिमा को वो रुतबा मिला जब कौन समाज था जो उनके पर पत्थर मार रहा था? शेख सावित्रीबाई फुले पे कौन लोग थे जो उनको घर से निकाल दिया जाता था? कौन वो लोग थे जो उनपे कीचड़ मारा करते थे? वो कौन लोग थे? यही वो आरएसएस की सोच थी, वही वो नफरती सोच थी जो उनपे पत्थर मारने का काम करती थी, और उसको आसरा देने का काम किसी ने किया तो शेख फातिमा ने किया। तो हम ऐसे लोग हैं, तो इसीलिए बोलते हैं ये गंगा जमुना तहजीब है। तो ये गंगा और जमुना है ना, सिर्फ बोलने का नहीं है, समझने का भी है। क्यों गंगा और जमुना कहा गया? इसका ये क्वेश्चन कभी कर लीजिएगा, क्यों गंगा जमुना तहजीब का एग्जाम्पल दिया जाता है? तो मैं चैलेंज करता हूं, भारतीय जनता पार्टी आपको जवाब नहीं देगा। ये मुहावरा क्यों बना गंगा जमुना? और भी बन सकता था, पूछ के देखिए, कोई बता नहीं पाएगा ये क्या है। तो इन्हें मालूम नहीं है हिंदुस्तान की मोहब्बत किस तरह से। और मुगलिया को गाली जाते हैं। आपने अभी क्या मुगलिया सल्तनत के दौर में आप देखो हमारा कितना ट्रिलियन का ये था, अब 5 ट्रिलियन। वो हिंदुस्तान स्टील एक्सपोर्ट करता था, हम शिप एक्सपोर्ट करते थे। हमारा जीडीपी देखो उस समय क्या दौर था, आज आपने क्या दौर बना दिया। और गंगा भी अविरल थी, पवित्र थी और साफ थी। तो वही कह रहा हूं कि उस दौर की जीडीपी देखो, जबकि वो लुटेरा था, ये था, फिर भी जीडीपी लेके कहां बना दिया। आप तो देशभक्त थे, सब कुछ थे, तब भी हमारे जीडीपी बेरोजगारी पे ला दिया। दुनिया को एक्सपोर्ट करने वाला स्टील कंपनी, आज हम इंपोर्ट दूसरी जगह से शिप और जहाज करते हैं, हम उस समय एक्सपोर्ट करते थे। तो दौर देखिए, उस दौर में क्या जीडीपी थी। तो मुगलिया सल्तनत ने लाखों बुराइयां थे, कुछ अच्छाइयां भी, उसने कुछ अच्छाइयां भी, हर एक में होती है, हर एक में होती। तो आप बार बार मुगलों को जिंदा करते हो। अरे मुगलिया सल्तनत फना हो गई, खत्म हो गई, उसको नाम लेने वाला आज कोई नहीं है, तो उसको जिंदा रखा है तो किसी ने, तो भारतीय जनता पार्टी ने रखा। राइट, थैंक यू सो मच सर। नासिर साहब, ऑल द बेस्ट टू यू। कभी बात करो, कभी मुगलियों के इतिहास पे बात करो तो देखो मुगलियों को काम क्या, उसके काम पे मुकाबला करो, उसके नाम पे अब उस काम पे अगर मुकाबला करोगे तो हिंदुस्तान $25 ट्रिलियन पे पहुंच सकता है। उसके काम को देखो, इस जहां शिक्षा नहीं था, एजुकेशन नहीं था, दुनिया की $22 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी उस समय। क्यों थी $5 ट्रिलियन की? तो सोच रहा, उसको रिसर्च करना चाहिए। कोई बुराई नहीं है किसी चीज को पढ़ाई करने में। Right, thank you so much, sir. We've run out of time. Nasir Sahab, all the very best to you, especially all the best to you for the 4th of June. Yes. Namaskar, sir. Thank you, namaskar. Nasir Sahab gets very emotional on Yes. on something, and he has a right to be emotional. Why not? I mean, and at the moment with us, I think he's been waiting a long time, Mr. Gurjot Singh Kheer. Gurjot Singh Sahab, Sat Sri Akal. Good evening. How are you, sir? Namaste, Sat Sri Akal. How are you, sir? How are you? Hey, looking very dapper. Look at that. How? कि सर कोई डिजाइनर ने डिजाइन वगैरह करके भेजा है आपको यहाँ, तो मतलब बहुत बढ़िया लग रहे हैं सर। Looks like you have just come from the beauty parlor and some designer has designed your clothes, etc. मुझे तो पता नहीं, 2 दिन पहले ही जेल से आए हैं। जेल से क्यों सर? और जेल में तो ब्यूटी पार्लर होते नहीं है, नहीं तो शायद मोदी जी जाएंगे तो तब हम उन्हें ये व्यवस्था दे दें, पर हमारे लिए तो नहीं थे ब्यूटी पार्लर। तो जेल में क्यों थे सर, ये तो बताएं। वो ऐसा कि 1 हफ्ते पहले 17 तारीख का दिन था, भारतीय जनता पार्टी ने मुलुंड में, जहाँ पर हम रहते हैं मुंबई में, वहां पर पैसे बांटने का काम किया। तो जब भी पैसे बांट रहे थे तो हमें खबर आई कि यहाँ पे पैसे बांट रहे। हम सामने गए, हमने पैसे देखे, पुलिस को बुलाया, इलेक्शन कमीशन को बुलाया, पुलिस के ऑफिसर्स आए, इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स आए, फिर हमें अरेस्ट कर लिया गया। 2 घंटे बाद देखा तो वहां पर फडणवीस जी आ गए और दिखाया ऐसा गया कि हमने वहां पर पुलिस के साथ धक्कामारी की है और हमें 353 में अरेस्ट कर दिया। और जो वहां पर तकरीबन 1000-1200 करोड़ पड़े थे, वो फडणवीस जी ने 2 घंटों में गायब कर दी। 1200 करोड़ आराम से कोर्ट में उन्होंने दिखाया कि वी हैड रिकवर्ड एन अमाउंट ऑफ 1,64,000, बट इट वाज ओवर 1000 or 1200 करोड़। 1200 crores? That's a huge amount. वाओ। तो टेम्पो मतलब इस तरफ डाइवर्ट हुआ है, कहने का मतलब ये हुआ, वो जो टेम्पो जिसकी बात कर रहे थे मोदी जी, इनके ट्रक आए हैं, मुलुंड में इनके ट्रक आए हैं। क्या बात है सर। And we have seen it, मतलब अब कुछ रह नहीं गया है। ऐसा नहीं है कि ये चुनाव में या तो ये भारतीय जनता पार्टी ने कुछ कचरा छोड़ा हो, जितना कर सकते थे उन्होंने सब कर लिया। So, Mr. Sanjay Dina Patil is going to win at any cost. भले वो पैसे बटे नहीं बटे।
देखो, ऐसा है कि आज लोग होशियार हैं और हमने भी लोगों को यही कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी पैसे बांट रही है तो दे वर डिस्ट्रीब्यूटिंग 7,000 वोट, तो 7,000 रुपए एक वोट का दे रहे थे। तो हमारा यही कहना था कि पैसे दे रहे हैं, आप ले लीजिए, पर वोट आपको मशाल पे ही देना है, संजय दीना पाटिल को ही देना है। तो जितने हमारे दोस्त हैं, जितने मुंडनकर हैं, ज्यादातर तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने लिए होंगे, पर अगर लिए भी होंगे तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि पैसे मिहिर के लिए होंगे और वोट संजय दीना पाटिल जी को दिया होगा। शरद पवार साहब ने कहा कि ये 400 पार का नारा हमने पहले भी सुना था, ये 400 पार आप बता रहे हो, 400 के आंकड़े बताओ, टेल अस फ्रॉम वेयर द फिगर्स आर गोइंग टू कम, शरद पवार जी। देन ही रिमाइंडेड दैट प्रफुल्ल पटेल इन 2004 केम टू हिम एंड सेलेक्ट वी शुड जॉइन द बीजेपी, द इंडिया शाइनिंग कैंपेन। बोले पवार साहब कहा तब भी मैं प्रफुल्ल पटेल जी को बोला था कि सुनो, ये इंडिया शाइनिंग को वोट्स में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, दे कांट कन्वर्ट इट, इट विल नॉट हैपन, आई हैव सीन मेनी इलेक्शंस एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, दे कुडंट कन्वर्ट। तो पवार साहब कह रहे हैं कि 400 पार हो ही नहीं सकता है, आंकड़े बताओ, हाउ डू यू सी दैट? देखो, पवार साहब ने बात कही है कि 400 पार नहीं हो सकता है, एकदम सही है प्रदीप जी। और दूसरा इतना ही कहूंगा कि शायद भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर लीडरशिप है उनका कहना है जो 400 पार का वो शायद सही हो सकता है। 2019 में उन्होंने 305 307 सीटें ली थी, अभी मुझे लगता है कि 93 या 95 वो शायद ले लेंगे, तो 2019 और 24 का मिला के इनका 400 पार हो सकता है। तो वैसे 400 सीट आई तो आई, बाकी तो 400 इनकी दिख नहीं रही है जी। लेकिन जहां तक अभी एनसीपी का प्रश्न है, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं, वी आर गेटिंग वेरी पॉजिटिव रिपोर्ट्स विद रिगार्ड टू द शरद चंद्र पवार एनसीपी। व्हाट आर द रिपोर्ट्स यू आर गेटिंग? हम तो कल एक मीटिंग में बैठे थे, वहां पर हमें अजीत पवार गट के लोगों का फोन आ रहा था कि पवार साहब कैसे हैं, सुप्रिया ताई कैसी है, जयंत पाटिल जी कैसे हैं, महबूब शेख कैसे हैं। तो दिख रहा है कि जो 4 सीटें दी थी, 4 कंधे जो अजीत पवार जी को मिले थे, माफ कीजिएगा, पर वो चारों के चारों कंधे भी अब गिर चुके हैं। तो ली उन्होंने 4 सीटें, आ रही उनकी 0 है। तो यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है कि अभी घर वापसी का टाइम चालू हो गया है और धीरे धीरे करके सब जितने भी आमदार है, जितने भी खासदार है, जो भगोड़े बनकर वहां पर गए थे, आज एक शर्म का घूंघट लेकर शायद यहाँ पर वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। सो व्हाट हैपेंस टू मिस्टर अजीत पवार? अजीत पवार साहब का क्या होगा? मतलब अगर मान लीजिए जो आप कह रहे हैं अगर वो ठीक हो गया तो फिर तो उनके लिए तो बहुत तकलीफ हो जाएगी अजीत दादा पवार के लिए, वो भी बड़े स्वाभिमानी हैं, मतलब इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम। अजीत पवार साहब की बात करूं तो उन्होंने बीच में एक स्टेटमेंट दिया था कि ये चुनाव का तो ब्रह्मदेव भी नहीं बता सकते कि क्या रिजल्ट आएगा, जबकि एग्जाम देने के बाद बच्चा कॉन्फिडेंट होता है कि मुझे 90 मिल रहे हैं, 35 मिल रहे हैं या मैं फेल हो रहा हूँ। तो वही ऐसा बच्चा बोलता है पेपर बहुत टफ था, पता नहीं क्या होगा, सब कुछ भगवान के भरोसे, जो बच्चा पेपर में कुछ लिख के नहीं आया। तो एक अब दिख रहा है जो इन्होंने गलती की थी भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाकर, वो ये भी समझ चुके हैं कि ये अपने दोनों हाथ अब जला चुके हैं। और पवार साहब इनके साथ इन्होंने सोचा था कि मैं एक खेल खेल लूं, तो पवार साहब को खेल बना देते हैं, तो खेलना तो उनके लिए बहुत एक छोटी सी बात है। गुरजोत जी, मनमोहन सिंह जी ने लेटर लिखकर मोदी जी को कहा कि यू brought the dignity of the prime minister to a lower level by discussing such things, और choicest words आप इस्तेमाल करते, कोई भी प्राइम मिनिस्टर इस्तेमाल नहीं किया था। और शरद पवार साहब ने भी कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनके बारे में बोला, भटकती आत्मा, नकली एनसीपी, नकली उद्धव सेना, बोला कि दिस हैज नेवर हैपेंड। और शरद पवार साहब ने कहा कि ये पॉलिटिक्स पहले कभी हुआ नहीं था, वी नेवर सॉ दिस काइंड ऑफ पॉलिटिक्स एवर, दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर सीइंग इट। उन्होंने याद भी दिला दिया था कि व्हेन ही वाज द एग्रीकल्चर मिनिस्टर ही टुक द देन सीएम नरेंद्र मोदी टू इजराइल even after everybody opposed नरेंद्र मोदी जी, that was the level of politics। और जो भी मुझे बोला है, choicest word यूज किया, वो कभी सर्वाइव नहीं हुआ। he gave examples of G.R. खैरनार and अन्ना हजारे, बोले अन्ना हजारे है किधर। तो पवार साहब was hurt, भटकती आत्मा, नकली एनसीपी, he was the founder। how do you see that comment of पवार साहब?
देखो, शरद पवार साहब के बारे में बुरा बोलना ऐसा है कि आप सूरज की तरफ देख के थूकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने ये किया है, महाराष्ट्र में आकर, हमारे घर में आकर पवार साहब के ऊपर उन्होंने कोशिश, सूरज के ऊपर उन्होंने कोशिश की थूकने की। तो वो जो थूक थी वो उनके ऊपर महाराष्ट्र में तो गिर चुकी है। और रही बात मनमोहन सिंह जी ने, ये उनका मजाक बनाते थे, उनके बारे में कई बातें कहते थे। तो मनमोहन सिंह वॉज द वन जो हमेशा मीडिया के सामने आते थे, जो हमेशा बात सुनते थे, बात करते थे। मोदी जी ने तो अभी मेरे ख्याल से पिछले 20-25 दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो एक्टिंग करना स्टार्ट की है, हमें तो वो भी देखकर बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि एक्टिंग में भी ऐसा होता है कि अपना डायपर गंदा कर देते हैं। एक्टिंग करते करते ऐसी बातें कर देते हैं कि हमारे लिए वो ऐसा लगता है कि चलो मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दी, हमारी 5 सीटें और इंडिया गाड़ी की बढ़ जाएगी। अरे वाह, मोदी जी ने दूसरी स्टेटमेंट दे दी, 10 सीटें और बढ़ेगी। तीसरी दे दी, 15 बढ़ गई। तो हम तो वो जो पेड एक्टर्स है जो उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, वो इंटरव्यू देख के हंस रहे हैं और ये सोचेगी जितना मोदी जी का इंटरव्यू हिट हो जाएगा। तो ही इज हिमसेल्फ हेल्पिंग अस टू विन द इलेक्शंस। विच स्टेटमेंट ऑफ कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है मोदी जी की जिसने आपकी सबसे ज्यादा मदद करी है? गांधी जी के बारे में उन्होंने जो बात की, महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन, उनको नेशन का बाप नहीं पता है। फिर दूसरी बार कहते हैं मुझे खुद का बाप नहीं पता। ये मैंने नहीं कहा, ये नरेंद्र मोदी ने कहा कि आई थिंक आई वॉज नॉट बॉर्न, आई वॉज बॉट टू अर्थ। तो सर, खुद का बाप आपको पता नहीं कौन है, नेशन का बाप आपको पता नहीं कौन है। तो ऐसे इंसान को मेरे ख्याल से एक कॉमेडी शो में होना चाहिए। लेकिन सर ऐसा उन्होंने क्यों कहा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, स्पेशली गांधी जी के बारे में। उन्होंने कहा कि 1981 में जब तक के माशाल्लाह जो गांधी पिक्चर नहीं बनी थी, रिचर्ड एटनबरो साहब जिसके डायरेक्टर थे और बेन किंग्सले साहब ने रोल अदा किया था गांधी जी का, कि उसके पहले गांधी जी को कोई जानता नहीं था, ऐसा उन्होंने कहा। ऐसा क्यों कहा? सही चीज है जो मोदी जी ने कहा कि गांधी जी को वो पिक्चर से पहले कोई नहीं जानता था। तो सही चीज है, क्योंकि मोदी जी जैसे अनपढ़ जो लोग थे, उन्होंने जिंदगी में कभी किताब तो खोली नहीं होगी, बुक तो खोली नहीं होगी। तो इन्होंने बुक खोली नहीं, कभी स्कूल गए नहीं, तो इनको महात्मा गांधी के बारे में कैसा पता चलता है? वैसे शायद इन्होंने कभी देखे नहीं होंगे अपनी जिंदगी में। और फोकट मेरे ख्याल से ब्लैक की जो टिकट का काम जो करते थे, तो वो तो दिन भर थिएटर में बैठे रहते थे। तो इन्होंने शायद थिएटर में ही पहली बार गांधी जी को देखा रहेगा। तो इस करके इनका स्टेटमेंट नरेंद्र मोदी के लिए वो चीज ठीक है कि उनको नहीं पता था कि गांधी जी कौन है वो पिक्चर से पहले। उन्होंने शायद पिक्चर में ही देखा होगा। हमने तो स्कूल में जाकर पढ़ा गांधी जी कौन है, हमारे घर से सीखा। जब थोड़ी उम्र समझने वाली आई तो नोट पे देखा, हर जगह गवर्नमेंट ऑफिस में देखे। तो शायद मोदी जी ने स्कूल, गवर्नमेंट ऑफिस पैसे कभी देखे नहीं होंगे। और हाल ही में मोदी जी की एक और स्टेटमेंट आई, उन्होंने पब्लिक रैली में कहा, अभी जो लास्ट रैली उनकी हुई, कि मेरा मुंह मत खुलवाइए, इंडिया अलायंस के जो लोग हैं उनके बारे में अगर मेरा मुंह खुल गया तो अगले उनकी जो 6 पुश्त हैं वो शायद जेल में जाएंगी, ऐसा कुछ बोला उन्होंने। क्या धमकी दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पुश्तों की बात वही करता है जिनकी पुश्तें होती है। मोदी जी का तो आगे पीछे कुछ है नहीं। खुद कहते हैं कि मेरा बाप कौन मुझे पता नहीं, बच्चे तो उनके हुए नहीं। तो ये दूसरों के बच्चों को जो टारगेट करते हैं, दूसरों की पुश्तों को टारगेट करते हैं, पहले खुद का तो देख ले। और रही बात, अगर हमारे बारे में कुछ ऐसी बातें हैं तो दिस इज द गोल्डन पीरियड, ये इलेक्शन है, कीजिए आप वो बातें। ऐसा तो नहीं है ना कि इंडिया अलायंस के नेताओं ने नरेंद्र मोदी जी को पैसे दिए हैं कि आप हमारी बातें मत कीजिए, आप चुप रहिए, आप हमारे सीक्रेट्स दुनिया को नहीं बताइए। और अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल से इनसे गंदा बंदा तो कोई नहीं है फिर, जो कि ऑपोजिशन से भी पैसे ले रहा है प्राइम मिनिस्टर होके कि आप मुझे पैसे दीजिए, मैं आपकी बातें नहीं बताऊंगा। अगर आप सच्चे देशभक्त हो तो बताइए फिर हमारी बातें, हमें भी फर्स्ट टाइम सुनने मिलेगी, हमें भी पता चलेगा कि हम जिनके साथ है वो कितने साफ है या कितने साफ नहीं है। तो इट विल बी ग्रेट मोदी जी अगर वो बता देते हैं, और सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, करके दिखाना चाहिए। एंड व्हाट इज योर ओपिनियन सर? मोदी जी एट द मोमेंट इज इन मेडिटेशन कर रहे हैं सर, वो ध्यान में लगे हुए हैं। वो कहते हैं कि वो दुआ मांग रहे हैं विकसित भारत के लिए भगवान से। देखो, उम्र काफी हो गई है उनकी, तो ऐसा तो नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी को जनता का प्यार मिलता होगा जैसे पवार साहब को मिलता है, कि उनके लिए जो ताकत है पवार साहब के लिए वो जनता की दुआएं है।
तो मोदी जी की उम्र हो गई है, थक गए होंगे, जनता भी प्यार नहीं करती, तो एक जगह चुपचाप जाकर बैठ गए हैं और यही सोच रहे हैं कि इसके बाद मैं क्या करूं। तो थक चुका है बेचारा, हार चुका है बेचारा, और उन्हें ये हार का एहसास हो चुका है। तो मेरे हिसाब से तो वो बैठ के यही सोच रहे हैं कि अब कहाँ भागना है, पाकिस्तान को जाया जाए या चाइना को जाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना में उनके काफी सारे दोस्त हैं जिनकी वो मदद करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो 2 डे ब्रेक लिया है वो भागने की तैयारी में ही लिया है। अब नीरव मोदी के बाद नरेंद्र मोदी भी शायद भाग जाएगा। प्रदीप जी, Pawar Saab said that Praful Patel always wanted to join the BJP, but somehow he came back. And प्रफुल्ल पटेल जी हारने के बाद भी लोकसभा ही लॉस्ट टू नाना पटोले, उसके बावजूद मैंने उनको राज्यसभा एमपी बना दिया, उनको मंत्री पद दिया। अजित पवार ऑल्सो द सेम थिंग, जो भी उनको हासिल हुआ था दैट इज बिकॉज ऑफ शरद पवार। तो वही विद्रोह करने के बाद भी पवार साहब ने उनको लेकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो पवार साहब क्या फिर, जैसे बजाज साहब ने पहले ही पूछा, विल ही एक्सेप्ट दीज पीपल बैक अगेन विद ओपन आर्म्स? बिकॉज जो उन्होंने कहा कि इट सीम दैट इवन इफ दे कम बैक ही विल टेक देम, ही इज गॉट अ बिग शोल्डर, बड़ा दिल वाला है। हाउ डू यू सी दैट? प्रदीप जी, ऐसा ना कि बचपन से मुझे गाड़ियों का शौक था, तो मैंने एक कार क्लब ज्वाइन किया। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है जिसे बाइक का शौक था, उसने बाइकर्स का एक क्लब ज्वाइन किया। तो प्रफुल्ल पटेल जी, जैसा आज हम उनके बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं लोगों से, तो उन्होंने भी बड़े बड़े स्कैम्स किए हैं, बड़ी बड़ी चोरियां की है। तो जैसे मेरे को कार पसंद थी, कार क्लब ज्वाइन कर लिया, तो उन्हें चोरी और स्कैम पसंद थे प्रफुल्ल पटेल जी को, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करनी थी। और रही बात पवार साहब की, तो जो आज संघर्ष पवार साहब कर रहे हैं, तो वो संघर्ष के साथी की अगर मैं बात करूं तो प्रफुल्ल पटेल वहां पर नहीं दिख रहे हैं, तो पवार साहब उन्हें गारंटी वापस नहीं लेंगे। और प्रफुल्ल पटेल जी जितने स्कैम्स हो करके बैठे, पार्टी में ही जाना चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को हमारे साथ पवार साहब है, पवार साहब अच्छी तरह से चला सकते हैं। एंड बाय हाउ मेनी वोट्स इज सुप्रिया जी विनिंग सर बारामती? 2.5 से 3 लाख वोट। 2.5 से 3 2.5 लाख? से 3 लाख वोट सुप्रिया ताई जीतेंगे। इट इज अ वेरी पॉजिटिव सीट। माशाल्लाह, अगर ऐसा हो गया तो अजीत दादा पवार साहब को तो रिटायर करना पड़ेगा सर। he'll have to retire और he'll have to go to शरद पवार हाउस एंड सिट देयर ओनली। उनको वहीं बैठना पड़ेगा, फिर उनको बोलना पड़ेगा भाई साहब गलती हो गई, अगर ये हो गया तो। देखते हैं अब खेत याद आते हैं या चाचा याद आते हैं, तो दोनों में से एक ना एक चीज तो याद आएंगे ही उन्हें। और अजीत पवार साहब, मेरे ख्याल से अगर पवार साहब को मिलते हैं तो हम सबको भी उत्सुकता रहेगी कि आगे पवार साहब का निर्णय क्या होता है, क्योंकि हमें पता जरूर है कि अजीत पवार साहब वापस जरूर आएंगे एक बार पवार साहब के साथ, पर पवार साहब आगे उनको लेते हैं या नहीं लेते हैं, देखिए क्योंकि तंग बहुत किया है वाली बात होगी। क्योंकि परेशान बहुत किया है सर, दिल तोड़ दिया उनको, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, बहुत परेशान बहुत किया है पवार साहब। और उसके अलावा सबसे मेरे खुद के लिए व्यक्तिगत तौर पे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि पवार साहब अच्छे मित्र हैं, बहुत सालों से जानते हैं, दिल्ली से जानते हैं, जब वो डिफेंस मिनिस्टर से दिल्ली में, तब से जब वो गोल्फ खेला करते थे, उनका इंटरव्यू तब से हम ले रहे हैं सर। बाकी सब ठीक है, जो भाषा का इस्तेमाल किया अजीत दादा पवार साहब ने शरद पवार जी के लिए, आई हैव स्टिल नॉट गॉटन ओवर दैट, वेरी फ्रैंकली। मतलब आई डोंट थिंक द रेस्ट ऑफ द पार्टी इज गोइंग टू एक्सेप्ट Mr. Ajit Dada Pawar back with Sharad Pawar. Do you think that will happen, कीर साहब? आज मैं मेरी बात करूं तो मेरी उम्र आज 27 साल है जी, और पवार साहब लगभग 3 गुना उम्र में जी, और हजारों करोड़ों गुना तजुर्बे में मुझसे बड़े हैं। तो ये 27 साल की मैं बात करूं तो आज मेरा 3रा साल है राष्ट्रवादी में। तो 3 साल में हमने देख लिया है कि किस तरीके से हमें लोगों ने, ऑपोजिशन ने तंग किया, क्या गलत हमारे साथ हो चुका है। 6 बार मैं जेल जा चुका हूँ, मेरे ऊपर केसेस मेरे ख्याल से सेंचुरी पूरी हो चुकी है। क्या बात तो है, वंडरफुल। अगर एक You are meant for great things. लड़के को, और अभी मुझे फर्क नहीं पड़ता, मतलब हम ये सोचते कि इससे गंदा और क्या, मतलब क्या ही कर सकते हो आप, हमारे यहाँ पर चाकू रखकर हमें मार दोगे, मार दो, हम खड़े हैं यहाँ पर, देखते फिर आपकी हिम्मत कितनी और हमारी हिम्मत कितनी।
तो अगर मुझे ये 3 साल में अनुभव राष्ट्रवादी में आ गया, 27 साल की उम्र में मुझे ये अनुभव आ गया, तो पवार साहब तो हमारे लिए, मैं बोलूँ तो ही इज एन इंस्पिरेशन। तो उनके साथ क्या कुछ नहीं जिंदगी में हुआ है, और जैसे आज हम हो गए हैं कि कर लो यार जो करना है, नहीं फर्क पड़ता, तो पवार साहब से ही हम सीखे। तो अजीत पवार जी ने ये सब जो किया, पवार साहब को इस चीज का कभी फर्क ही नहीं पड़ा। एंड ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, वी लर्न फ्रॉम हिम, ही इज एन इंस्पिरेशन टू द नेशन। That It is goes very without sad that Pawar Saab could never be a prime minister of the nation, but we see Supriya Tai as a future prime minister. So it's like मतलब कि क्या ही कर सकते हो। और ये भी शायद भगवान ने एक ऐसा लिखा होगा कि संघर्ष करने के बाद हमें सब कुछ मिलता है। तो सुप्रिया ताई ने जो संघर्ष देखा है, आई डोंट थिंक देयर इज अ बेटर लीडर इन द नेशन अदर देन शरद पवार साहब। सबसे अगर फॉरमोस्ट की मैं बात करूँ, कोई अगर नेशन को हमारे या वर्ल्ड लीडरशिप की बात करूँ, तो यस इट इज शरद पवार साहब। उनका एक्सपीरियंस, उनका वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उनकी नॉलेज, ये आज किसी के पास नहीं है। और आज पवार साहब अगर ये हमारे देश के लिए, पर्सनल लेवल पे, हमारी कंट्री के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए, हर एक कम्युनिटी के लिए, फॉर ह्यूमैनिटी, दिस इज अ शेम के पवार साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए देश के। बट कोई बात नहीं, सुप्रिया ताई ने वो संघर्ष देखा है, एंड पवार साहब अगर एक थे तो सुप्रिया ताई वो एक्सपीरियंस से 1.5 बनेंगे। Right, that's just about it. Keer Saab, Harjot Singh Keer Saab, thank you so much for joining us. Great pleasure in talking to you, and I'm really impressed. Now that you have got about 100 cases against you and you've been to jail so many times, you are meant for really great things. We are absolutely sure. Thank you so much, Keer Saab. God bless you, and all the best for June 4th. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू राजीव जी। Well, such a young man, and Yes. he's been to jail so many times. Yeah, बिल्कुल से। How lovely. There is hope for this country still. Really and truly wonderful. People's fighting spirit. That's right. Well, that's just about it for tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. From both Pradeep ji and myself. All the very best to you. आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. मतलब शेयर करें या लाइक करें या ना करें, आपके ऊपर है. कमेंट भी भेजें और सब्सक्राइब जरूर करें. वो जो घंटी भी बज गई है ज़बरदस्त तरीके से, प्रदीप जी की घंटी है वो, देख लीजिएगा। Irish clock that strikes जी, 30. तो कृपा करके सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है, कितनी सीटें किसकी आ रही हैं, क्या लग रहा है आपको, बीजेपी कितनी सीटें आएंगी, इंडिया अलायंस की कितनी सीटें आएंगी, जरा भेजिए, हम भी देखते हैं आप लोग क्या कहते हैं। प्लीज डू सेंड एज द प्राइम मिनिस्टर, और डू यू थिंक वी विल सी मिस्टर मल्लिकार्जुन खड़गे और मिस्टर राहुल गांधी एज पीएम? जरूर भेजिए अपने कमेंट्स में, एंड we would love to read them. Thank you so much. That's it. That's all we've got for you in tonight's show. आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram. जय श्री राम, हर हर महादेव. Har Har Mahadev.